Hello, my dear students. Welcome back to the next class of this channel, the Brainy Batch. I'm Aditya, your psychology educator. Today, we are going to revise class 12 psychology, chapter number 2, self and personality. It is a very lengthy chapter and also very important chapter for your boards. So, without wasting any time, let's move on. Okay, chapter number 2, self and personality, one short revision. Abhi, this is one of the most important chapters and also it carries a lots and lots of marks. So, it is वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये चैप्टर को समझ ले क्योंकि सारे सेक्शंस में से इसके इस चैप्टर के तो क्वेश्चंस आएंगे ही राइट सो लेट्स मूव ऑन now this chapter is divided into two parts or two aspects if we can talk about is first is self and second is personality ठीक है तो पहले हम लोग सेल्फ के बारे में बात करेंगे तो जब भी हम लोग सेल्फ बोलते हैं सेल्फ मतलब क्या होता है आई मी माई सेल्फ मतलब मैं क्या हूँ एज अ पर्सन I am basically it's my experiences, my perceptions about the world, the beliefs, the values that I hold. ये सारी चीज़ें एक compilation में एक self को बनाती है ठीक है and that is how we basically make our personal identity and that is how we make our social identity. As it is given in your screen, the personal identity and social identity can be asked as a 2 marker question. ठीक है combine 2 marker question पूछ सकते हैं and expect more competency and application based question in your papers as I've already mentioned. And remember to always give examples because they are very important. मतलब it just goes without saying आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एग्जाम्पल दो now that you have might have practiced writing in your pre boards and द स्कूल एग्जाम्स आपको एग्जाम्पल्स देने का इम्पोर्टेंस पता चला ही होगा बिकॉज कंसेप्ट अगर ऊपर नीचे हो जाए एग्जाम्पल्स यू कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट प्रॉपरली सो पर्सनल आइडेंटिटी मतलब क्या होता है इट इज़ हु एम आई मैं क्या हूँ एज अ पर्सन. So personality refers to the unique characteristics, traits, abilities and values that makes an individual different from the others. मुझे मेरे खुद के क्या चीज़ें हैं जो मुझे दूसरों से अलग बनाते हैं मतलब हु आई एम. तो मेरा नाम फिर मेरा जेंडर ये सारी चीज़ें मेरा हाइट वगैरह सब ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी में आता है. फिर मेरी क्या वैल्यूज़ है मेरी क्या हॉबीज़ है ये सारी चीज़ें भी पर्सनल आइडेंटिटी में आती है. और पर्सनल आइडेंटिटी बनेगी और पर्सनल आइडेंटिटी से ही सोशल आइडेंटिटी बनेगी. जैसे प्राइमरी ग्रुप होता है प्राइमरी ग्रुप मतलब we are by default born in those we are by default the members of those group. तो therefore हम लोग कौन से रिलीजन के हैं कौन सी नेशनैलिटी के हैं ये सारी हमारी सोशल आइडेंटिटी होती है जो मतलब हम कौन से सोशल ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है. Social identity refers to the part of our self-concept derived from our membership in social groups such as family, religion, gender, school, nationality, etc. मैं कौन से रिलीजन से बिलोंग करता हूँ मैं कौन सी लैंग्वेज स्पीक करता हूँ मेरी एथनिसिटी क्या है फिर मैं कौन से स्कूल में जाता हूँ बेसिकली गिविंग माई एसोसिएशन टू अ सोशल ग्रुप. Yes, I might be a Gujarati, I might be a Punjabi, I'm from this place, I'm from that place, I go to this school, I go to that school. That basically is my social identity. फिर उसके बाद if we move on we get kinds of self में self as a subject and self as an object भी आता है. तो मतलब subject और object में difference क्या है मतलब दोनों self की ही बात कर रहे हैं but as a self how it is seen and how, as an object how it is seen is different. Again very important 2 marker वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्कर ये पूछ सकते हैं सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट और यहाँ फिर आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है कि एक सेंटेंस दे दिया तो इज इट अ सेल्फ इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन ऑब्जेक्ट और इज इट अ सेल्फ बीइंग इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है तो पहले सब्जेक्ट की बात करें सेल्फ एज अ सब्जेक्ट मीन्स आई हु थिंक्स फील्स एंड एक्सपीरियंस इट इज द एक्टिव नोअर. आई एम थिंकिंग आई एम हैप्पी मतलब मैं. सब्जेक्ट मतलब मैं खुद कैसा हूँ. ठीक है तो आई एम वेरी हैप्पी आई एम फीलिंग कंटेंटेड आई एम फीलिंग सैड आई एम फीलिंग स्लीपी आई एम फीलिंग लोनली. तो दैट इज बेसिकली मेरी खुद की फीलिंग्स मेरे खुद के इमोशंस मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस दैट इज सेल्फ एज अ सब्जेक्ट मतलब इन फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव सेल्फ एज अ सब्जेक्ट. ठीक है and फिर when we talk about self as an object is basically लोग हमें कैसे देखेंगे we basically हम ऑब्जर्व कैसे होते हैं डिस्क्राइब कैसे होते हैं बाय दूसरे अदर पीपल.
जैसे से फॉर एग्जांपल ही और शी इज अ डांसर, कोई हमें देख पा रहा है कि दैट पर्सन इज अ डांसर, ठीक है। फिर ही और शी कुड टेल दैट ही और शी इज काइंड, मतलब दूसरा बोल रहा है कि वो एक काइंड इंसान है। मतलब मेरे ऐसे ट्रेड्स, मेरी ऐसी चीज़ें जो ऑब्जर्व होती है और जिससे मेरी पहचान बनती है, दैट बेसिकली बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। सो आई एम काइंड, आई एम टॉल, आई एम गुड एट स्टडीज, ये लोग मेरे बारे में बेसिकली जान सकते हैं, मतलब दिखता है उनको। ऑब्वियसली दे कैन नॉट फील व्हाट आई एम फीलिंग। So if I'm feeling something at a particular point of time, if I'm feeling happy right now, so that is self as a subject. But if other could see me being happy, like I'm very happy, मैं लोगों को बोल रहा हूँ, so that is basically self being the subject. Oh, he is very happy. Oh, he seems very open nowadays. So that is basically self as an object. मतलब मैं दूसरों से कैसे, how we see and evaluate ourselves from others perspective, मतलब हम लोग देखते हैं कि अच्छा अभी मैं अगर सर्टेनली ऐसे बिहेव करूंगा तो शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा, या फिर अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो पीपल माइट थिंक दैट आई एम कॉकी पर्सन, वैसा सारा थिंग, ठीक है। तो एज आई ऑलरेडी मेंशन, इट कैन कम एज अ कंबाइंड 2 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। नाउ काइंड्स ऑफ सेल्फ, नाउ या काइंड्स ऑफ सेल्फ, ये काइंड्स ऑफ सेल्फ बाय द वे ये वाला चीज इसमें नहीं आएगा, सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ सब्जेक्ट ही टॉपिक है। आई एम सॉरी, काइंड्स ऑफ सेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग। इसमें आपका आता है पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ, ठीक है। अभी अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर आइडेंटिटी के बारे में बात की थी, इसमें सेल्फ के बारे में बात की है। ऊपर सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी, इसमें पर्सनल और सोशल सेल्फ के बारे में बात की है, तो बहुत ओवरलैपिंग है। तो make sure that you read the questions properly so that you can answer on what is there, ठीक है। Again this might come as a combined 2 marker और 3 मार्कों ने भी पूछ सकते हैं, you never know, I'm just mentioning it in bracket। अच्छा चलो देखो, पर्सनल सेल्फ मतलब क्या, मुझे सिर्फ मेरे बारे में पढ़ी है। एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, इट इज मी हु इज बेसिकली at everything। आई एम नॉट सेइंग at fault, but me being responsible, me being जिसमें ऐसे लिखा हुआ है concerned with world self, मेरे खुद के बायोलॉजिकल नीड्स जैसे माई हंगर, माई थर्स्ट नीड्स। फिर emphasizes on personal freedom, personal responsibility। आई एज अ पर्सन वुड वांट दैट कि मुझे कोई टाइप की फ्रीडम हो, मुझे लिबर्टी हो। आई एंड अगर मेरी एक्शंस से ही बेसिकली मेरी एक्शंस वुड मेक मी रिस्पॉन्सिबल कि मैंने ऐसा बिहेव किया था। सो दैट इज बेसिकली पर्सनल सेल्फ। मेरे इसमें गोल्स आते हैं, नीड्स आती है, एबिलिटीज आती है, फीलिंग्स आती है। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, sorry, I want to become a doctor, that is my personal self। I want to be a singer, that's my personal self। I feel that I'm good at writing, that is also part of personal self, ठीक है। पर हाँ एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जब तक बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होगी पर्सनल सेल्फ की, तब तक ये बाकी की नीड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें बाद में आती है। पहले मेरी भूख प्यास अच्छे से फुलफिल होनी चाहिए, फिर उसके बाद मेरे बाकी की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो फुलफिल होगी अपने आप ही। सो इट्स अबाउट व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, माय एम्बिशंस, माय टैलेंट्स, माय पर्सनालिटी। सो व्हेन यू थिंक ऑफ मी, और when somebody says my name, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो that is basically my personal self। मतलब मेरे ambitions, मेरी talents, मेरी personality जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है, that is basically my personal self। and social self मतलब it focuses on our relationship and social roles and norms। I in the society, I'm a teacher, so basically I'm a contributor in a way that I'm providing wisdom to my students। so basically that is my social role। सेल्फ को सोशल कंटेक्स्ट में रिलेट कर दोगे तब वो सोशल सेल्फ बन जाएगा। emphasizes on the aspect of life such as cooperation, affiliation, sacrifice, support and sharing। मतलब जब तक, पहले बात तो आपने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स समझा होगा, जिसमें वेरी बॉटम में कम्स द बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो गए, फिर उसके बाद ही ऊपर चढ़ते चढ़ते हम सोशल सेल्फ में पहुंचते हैं, तो जिसमें हमें फ्रेंडशिप चाहिए, फ्रेंडशिप के साथ हमारे फैमिली सपोर्ट चाहिए, और not only that we want kind of a bonding with others, but we also want care and love from others। तो नीड ऑफ कॉपरेशन, नीड ऑफ अफिलिएशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट एंड शेयरिंग जो हम दूसरों के लिए करते हैं, जो अपने होते हैं,
the people we are close to basically comes in the aspect of social self. That is, how am I connected to others, also known as relational or familial self. ये इसका मतलब ये आपको 1 मार्कर MCQ में पूछ सकते हैं कि सोशल सेल्फ को हम दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, या तो फेमिलियल सेल्फ बोलेंगे या फिर सोशल सेल्फ. I am a daughter, I am a son, I am a friend, I am a student, I am an Indian. Again, concerned with the social identity of a person, that becomes our social self. तो kinds of self full fledged भी आपको 2 मार्कर में पूछ सकते हैं. चलो, let's move on. Now, cognitive and behavioral aspects of self, very 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 important 6 मार्कर question. इसमें डायरेक्टली आपको ये टॉपिक ही पूछ देंगे कि explain the cognitive and behavioral aspects of self करके, या फिर आपको पूछेंगे explain the meaning of self concept and under it explain self esteem, self efficacy and self regulation, या फिर केस स्टडी पूछ देंगे, या फिर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे, या फिर जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन से कंसेप्ट आते हैं. So just know that varieties can be a lot, and these all are individual 3 marker question, 3 markers and 4 markers in themselves. ये 3 मार्कर या 4 मार्कर में जाएगा, ये भी 3 मार्कर या 4 मार्कर में जाएगा, ये भी 3 मार्कर या 4 मार्कर में जाएगा. ठीक है. एंड मेक श्योर दैट योर answers are in good detail, but at the same of time, whenever you write answers, make sure that you are underlining the key points which are very very important, right? अभी कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सेल्फ में फर्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज सेल्फ कंसेप्ट. सेल्फ कंसेप्ट के अंदर से ही हम फिर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ रेगुलेशन को डिफाइन कर पाएंगे. सेल्फ कंसेप्ट रेफर्स टू द नॉलेज एंड बिलीव्स ऑफ अ पर्सन that a person has about himself or herself. It includes how we see, think and describe ourselves. हमें खुद के बारे में कितना पता है, हम खुद की वैल्यू कितनी करते हैं, हम खुद को कितना एवेल्युएट करते हैं. ठीक है. दैट बेसिकली एंटायरली कम्स अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट. मतलब आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम शाय, आई एम गुड एट मैथ्स. इससे हमारे सेल्फ कंसेप्ट बेसिकली हर एक इंसान की वैरी करेगी. आई एम कॉन्फिडेंट मतलब ऑब्वियसली वी कैन से दैट हमारा सेल्फ कंसेप्ट ज़्यादा है. I don't like speaking to a lot of people, or I'm an introverted person, or I feel very hesitated to share my feelings to others. That is basically a part of lower self concept. ये आपने शायद सेल्फ कंसेप्ट क्वेश्चनर में बेसिकली ये टाइप के क्वेश्चंस एनकाउंटर किए होंगे. ठीक है. तो इसमें वही क्वेश्चनर में ये बेसिकली फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें आपको कैटेगरी वाइज मार्क करना पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी में बेसिकली फिट आते हो. ठीक है. तो फर्स्ट इसमें आता है अपना सेल्फ एस्टीम. आपने ये सुना ही होगा, पीपल लेमेंस पर्सपेक्टिव में बोलते हैं कि आई हैव सेल्फ एस्टीम इश्यूज, या फिर दैट पर्सन हैज़ अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम या फिर वेरी लो सेल्फ एस्टीम. तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेल्फ एस्टीम मतलब हमारे खुद के वैल्यू जजमेंट्स. हम लोग खुद को भाई कितना वैल्यू करते हैं, दैट बेसिकली कम्स अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम, विच रेफर्स टू अ पर्सन्स ओवरऑल इवैल्यूएशन और सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. हमें खुद का सेल्फ वर्थ कितना है. इस बोलता है ना, जब तक खुद को प्यार नहीं करोगे तब तक लोग आपको प्यार नहीं कर पाएंगे. सो ये सारा इसमें आता है अपना सेल्फ एस्टीम में. So by the age of 6 or 7, children develop self-esteem in 4 areas of the very important 4 areas, जिसमें academic आता है, social आता है, physical athletic आता है, and physical appearance में आता है. Physical athletic मतलब in the terms of कि sports में. ठीक है. और physical appearance में मतलब हाव भाव में, मतलब the way they look, that is basically physical appearance. तो तब तक self esteem most of develop हो ही जाती है. इट टर्न्स आउट कि बच्चों में सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोज टू लाइफ दैट मच, एंड द मोर दे ग्रो अप, धीरे धीरे करके व्हेन दे फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ, मतलब ऑब्वियसली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अपने आप में ही बहुत मैटर करते हैं. तो धीरे धीरे करके सेल्फ एस्टीम फिर ऊपर नीचे होने लगती है. तो इट टेल्स अस हाउ मच वी वैल्यू एंड एक्सेप्ट आवरसेल्व्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब a lot of times हम लोग खुद की सेल्फ एस्टीम, इतना लो कॉन्फिडेंस होता है ना अपने ऊपर कि
मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज बेसिकली अ प्रॉब्लमैटिक कंसर्न, ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या होता है, एक तो ओवरऑल लोगों की जनरल सेल्फ एस्टीम होती है, और या फिर कोई स्पेसिफिक एरिया में सेल्फ एस्टीम होती है। जैसे आई एम 150% श्योर मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। सो दैट इज बेसिकली वेरी वेरी हाई सेल्फ एस्टीम ऑन मैथमेटिकल या फिर एकेडमिकल एस्पेक्ट। I'm a very good orator, I can speak in front of other people, so that is again a different area of self esteem। या फिर मतलब I know that nobody loves me and I'm going to stay single for my entire life। So that is basically again a lower self-esteem, ठीक है। If a person feels confident or worthy, they have high self-esteem। If they feel inferior or doubtful, constantly खुद को डाउट करते हैं, especially अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और फिर लो फील करते हैं, so that means we have lower self-esteem, ठीक है। सो ये आपका आ गया सेल्फ एस्टीम। फिर आती है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है कि कितना मुझे लगता है कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शंस के लिए, और कितना मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और लक पे डाल देता हूँ सारा का सारा ब्लेम, इज बेसिकली द सेल्फ एफिकेसी। मतलब क्या कि I know my paper went bad because I didn't prepare well for it, or I was not able to prepare well for it. So that is basically a person with high self efficacy। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे I know that I'm responsible for my actions, and I know that I'm responsible for my own life outcomes। तो या फिर एक दूसरा इंसान यही चीज़ को डिफरेंटली बोलेगा कि आज का पेपर बहुत ख़राब गया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता, बिकॉज टीचर ने ही पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाया, या फिर टीचर को हमारी बचानी ही होती है, उनको हमसे कुछ प्रॉब्लम ही है, या फिर वो हमेशा ही ऐसे पेपर बनाते हैं, या फिर मेरा तो नसीब ही ख़राब है, कभी भी मैं प्रिपेयर करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है जो बेसिकली मैं प्रिपेयर करके जाता हूँ। सो व्हाट इज़ बेसिकली ऑल दीज थिंग्स, दिस इज बेसिकली द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही कम्प्लीटली ब्लेम कर दिया। मैंने खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं कि हाँ मे बी कुछ तो 2% की 3% की मेरी भी गलती होगी कि मेरा पेपर ऐसा क्यों गया। सो इसी basis पे if we get to define it, it refers to a person's belief in their ability to organize and perform actions required to achieve a goal or complete a task। It is also the extent to which one feels that he can control his life's outcome, or life outcomes are controlled by luck or external factors, ठीक है। कि हमें हमें अगर अपनी एबिलिटीज पे भरोसा होगा ना, सो दैट मीन्स हमारी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी। सिमिलरली अगर हमें ऐसा लगता होगा ना कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे खुद अकेले से कुछ होगा ही नहीं, तो दैट मीन्स दैट इज आई हैव अ लो सेल्फ एफिकेसी। तो मेरा तो ऑब्वियसली बनता है कि मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही ब्लेम करूँगा। अभी जैसे से फॉर एग्जांपल एब्सेंट मैं हूँ स्कूल में, और मैं टीचर के ऊपर ब्लेम डाल देता हूँ कि जब कि मैम मैं एब्सेंट था ना इसलिए हुआ नहीं, या फिर आपने एक ही बार करवाया और मैं एब्सेंट उसी दिन हो गया। तो इजंट इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द वर्क पेंडिंग जो आपको खुद से कंप्लीट करना चाहिए? नो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर बेसिकली ब्लेमिंग इट ऑन द अदर पर्सन। High self-efficacy person takes on challenge, works harder, does not give up. Low self-efficacy avoids difficult tasks and gives up very very easily and blames on external factors, as I've already said। इसमें टेक्स्ट बुक में बांदुरास सोशल लर्निंग बहुत अच्छे से दिया गया है, जिसमें एडल्ट्स और चिल्ड्रन को दे वर बेसिकली एक्सपोज्ड टू सर्टन काइंड ऑफ बिहेवियर, एंड फिर वो देखते थे कि वो कैसे इमिटेट करते हैं लोगों के बिहेवियर को। तो इमिटेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल लर्निंग। इमिटेशन मतलब क्या कि हम किसी रोल मॉडल को कॉपी करके उनके बिहेवियर्स को कॉपी करके हम खुद बिहेव करते हैं, दैट इज़ बेसिकली रोल मिमिकिंग, ठीक है, या फिर इमिटेशन जो बोलते हैं। मिमिक करना इज डिफरेंट, दैट इज इमिटेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। मतलब सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा मैंने देखा है पूछा हुआ क्वेश्चन, सो इट माइट कम। Self-regulation refers to the ability to control our feel and manage our own behavior, emotions and thoughts in order to achieve certain kinds of goals। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो सेल्फ रेगुलेशन इन आवर बिहेवियर मतलब क्या, जैसे हम कितनी हद से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना प्लेजर से हम लोग अपने आप को दूर रख सकते हैं, मतलब प्लेजर सीकिंग बिहेवियर से अपने आप को दूर रख सकते हैं।
मतलब हमारा ये सारा हमारा सेल्फ रेगुलेशन पे आ जाता है। तो जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में व्रत रखना, फास्ट रखना, ठीक है, रोज़ा रखना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, दिस इज बेसिकली अस इंक्रीजिंग आर सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल विच इज़ डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। कि जितना ज़्यादा चीज़ें मेरे सामने पड़ी है जो मुझे एंटाइज करती है कि मुझे करनी चाहिए, मुझे खानी चाहिए, मुझे पीनी चाहिए, अगर उसको हम अवॉइड करेंगे अपने खुद के हेल्थ के लिए या फिर खुद के बेनिफिट्स के लिए, दैट मीन्स इट शोज दैट आई एम हाई ऑन सेल्फ रेगुलेशन। हम लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी अपने कंट्रोल लूज कर देते हो, तो दैट मीन्स वी आर लो एट सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन में ही सेल्फ कंट्रोल आता है। It means guiding one's actions according to personal goals, values, social expectations. Self-regulated person can resist temptations, manage emotions, and stay focused on long-term goals. मतलब manage temptations का मतलब क्या है कि हम लोग जो छोटे मोटे जो डोपामीन हिट वाली चीज़ें होती है उसको हम अवॉइड करते हैं, सो दैट हमारा खुद का बेटरमेंट हो और हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ठीक है, तो लर्निंग ऑफ delay or defer the gratification of needs is known as self control. Very very important. Defined self control can be asked as a 2 marker question. ठीक है, तो ये भी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसी के अंदर बाय द वे, हाँ, इसी के अंदर ही ये आपके टेक्निक्स आ जाते हैं। तो define self regulation or define self control and explain the techniques of self control can be asked as a 4 marker question along with definition. So make sure that you are not missing these out. Since there was no space over here, मेरे को नीचे लिखना पड़ा था ये। उसमें 3 टाइप की चीज़ आती है, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब क्या, ऑब्जर्विंग कीपिंग ट्रैक ऑफ आवर ओन बिहेवियर। जैसे हमने अगर डिसाइड किया है कि हम लोग दिन का 4 किलोमीटर भागेंगे, तो देयर इज अ ट्रैकर जो हमारे स्पीड को, हमारे स्टेप्स को ट्रैक करके रखता है। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर सेल्फ मॉनिटरिंग। if I have decided to lose my weight or gain my weight, तो हमेशा ही ओवर एंड ओवर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में मैं अपने वेट को चेक करता रहूँगा, अपने डाइट्स को मैनेज करके या फिर अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके, जहाँ पे मैं अपने खुद के ही बिहेवियर्स को मॉनिटर करूँगा और ट्रैक रखूँगा कि कितना मैंने गेन किया, कितना लूज किया। तो दैट इज़ बेसिकली द सेल्फ मॉनिटरिंग। एग्जाम्पल, ट्रैकिंग डेली स्टडी आवर्स, डेली मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, 5 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर सेल्फ इंस्ट्रक्शन, गिविंग पॉजिटिव डायरेक्शंस टू वन सेल्फ, मतलब अफर्म करना, ठीक है। तो जैसे हम खुद को इंस्ट्रक्ट करते हैं, नहीं 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 नहीं, बस अभी 4 दिन ही बाकी है कब एग्जाम को खत्म होने में, अभी मैं कंट्रोल करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू मीट फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू यूज सोशल मीडिया, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो हम अपने खुद को ही बेसिकली सेल्फ इंस्ट्रक्ट करते हैं अलाउड, सो दैट हम लोग टेम्पटेटिंग बिहेवियर से अपने आप को दूर रख सकें। एंड लास्ट इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट। वेरी अगेन इट्स वेरी फन। सेल्फ रीइंफोर्समेंट मतलब जब हमने सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया, उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड करना ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वी आर नॉट ओवर हियर टू ऑलवेज पनिश आवरसेल्फ फॉर सम और द अदर थिंग, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवॉर्ड आवरसेल्व्स एवरी नाउ एंड देन। हम लोग जैसे खुद को ट्रीट देती कुछ अच्छा खा के, या फिर मूवी देखने चले गए फ्रेंड्स के साथ, या फिर एक दिन you decided that okay, today I'm going to take a break and I want to watch the series or movie that I want to watch. So that is rewarding oneself for a desired behavior that you have achieved. तो जैसे से फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि मैं 15 डेज में एग्जाम चलने वाली, 15 डेज में मैं 1 मिनट भी मेरे फ़ोन को नहीं देखूंगा, ठीक है। सो एज अ रिवॉर्ड यू माइट कीप ऐसा कि मैं फ़ोन को, सोशल मीडिया को और सीरीज़ को दूर रखूंगा। And the moment your exam gets over, the next day you reward yourself by watching and completing all the series that was pending for you to watch. Watching one episode after completing the revision, that also might be one of the examples that you could give. Yeah. So that is techniques of self control. अभी कल्चर एंड सेल्फ, हाँ, अभी कल्चर एंड सेल्फ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। 3 मार्कर या फिर 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। अभी कल हम लोग अपने सेल्फ को 2 कंटेक्स्ट में समझा सकते हैं, एक तो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में और एक इंडियन कंटेक्स्ट में, विच आर वेरी पार एंड पोलर ऑपोजिट कल्चर्स फ्रॉम ईच अदर। से फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बात करूँ तो इंडियन कल्चर में देयर इज़
हम लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं एल्डर्स की बाय वी बेसिकली bow ourselves down in front of bow ourselves down in front of our elders. हम लोग हमेशा ही उनके पैर छूते हैं, पर you might not see that culture getting followed in the west. ठीक है, तो that is a difference in culture. तो इसी हमारा सेल्फ वैसे ही मोल्ड होगा जिस कल्चर में हम बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, तो इंडिविजुअलिस्टिक मतलब फोकस इज ऑन पर्सनल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस. वेस्टर्न जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडियन कल्चर वही कलेक्टिविस्टिक है. इंडिविजुअलिस्टिक मतलब मैं मेरे बारे में सबसे पहले सोचूंगा, बाकी के लोगों के बारे में सेकेंडरी. पर कलेक्टिविस्टिक कल्चर में हम लोग हमेशा ही पहले दूसरों का सोचते फिर अपना सोचते. तो कलेक्टिविस्टिक मतलब फोकस इज ऑन फैमिली एंड ग्रुप वेलफेयर, मतलब दूसरों का भला हो, दूसरों का अच्छा हो, कम्युनिटी सर्विस हो. या फिर फैमिली की ही बात करें तो इंडियन फैमिलीज में इट इज दैट कि तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए या फिर मेरी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से. तो दैट इज कलेक्टिविस्टिक नेचर. It's not always something that I would want, but it's also something that I want it for myself and my family. ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर इज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंसेप्ट इन आई. उसमें आई सबसे बड़ा होता है, मतलब सेल्फ, हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आई हमेशा ही कैपिटल लिखते हैं, पर उनमें वो आई को ही ज्यादा महत्व देते हैं. they will think and do everything for themselves first and then they will think of others if they want to. And Indian culture में we are interdependent self concept, that is we identity. Group हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important है. Group and group membership is very very important, so always remember that. Fifth, third is boundary between the self and the others are relatively fixed. ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर में हमेशा ही, जैसे मैंने बोला, सेल्फ का कंसर्न पहले होता है, तो दूसरों के बारे में हम हमेशा ही बाद में सोचेंगे. तो देर इज ऑलवेज अ क्लियर डिमार्केशन, देर इज ऑलवेज अ बाउंड्री दैट इज देयर बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर्स, कि पहले मैं खुद का सोचूंगा फिर दूसरों का सोचूंगा. ठीक है, मतलब गुड बाउंड्री इज ड्रॉन. एंड प्राइवेसी का एस्पेक्ट भी वेस्ट में ज़्यादा होता है. वी थिंक दैट कि मतलब उनको ऐसा है कि they would rather stay alone than to stay with 50 people in a house or 5 people in the house. But now things are changing and becoming more heterogenic. But this is the core aspect कि ऐसा होता है maximum. And if we talk about Indian culture, it is shifting nature of boundaries. मतलब कभी प्राइवेसी होती है, कभी कलेक्टिविज्म होता है. से फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि फेस्टिवल्स जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम नवरात्रि जैसे खेलते हैं, होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम सब लोगों के साथ एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर उस पर्सन को जानो ना जानो. तो आपने होली में रेन डांस किया, तो यू माइट बी डूइंग रेन डांस विद अ स्ट्रेंजर हु यू डू नॉट नो, हैव नॉट सीन इन योर एंटायर लाइफ, और तुम लोग साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो. पर आफ्टर दैट तुम कौन मैं कौन हो जाता है फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. तो दैट इज शिफ्टिंग नेचर ऑफ बाउंड्री. ठीक है, कि कभी हम लोग बहुत साथ में होते हैं और कभी हम लोग अपनी प्राइवेसी में होते हैं. पर वेस्ट में मैक्सिमम टाइम प्राइवेसी ही सबसे बड़ा उनका कंसर्न होता है, रादर देन बीइंग देयर विद अदर्स. ठीक है, इसलिए इन देयर कल्चर आफ्टर 18 children get out and they basically become independent, so that they start living their independent lives. ठीक है, तो दैट इज कल्चर एंड सेल्फ. अभी सेल्फ वाला पोर्शन इधर एंड होता है. उस नेक्स्ट पोर्शन जो आता है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज पर्सनालिटी? डिफाइन पर्सनालिटी एंड स्टेट द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी. इसमें फीचर्स क्या, उसमें आपको कैरेक्टर्स भी पूछ सकते हैं. आई एम वेरी सरप्राइज, आज एनोटेशंस मुझे कंफर्टेबली मैं कर पा रहा हूँ, दैट इज गुड. बट स्टिल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है. ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी माइट कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, चलो. derived from a Latin word persona, which means a mask worn by the actors in Roman theaters. Personality का जो वर्ड है इट्स derived from a persona. persona मतलब पहले के ज़माने में रोमन थिएटर में मास्क पहनते थे अपनी ट्रू सेल्फ को कवर करने के लिए. ऑफ कोर्स इट वाज फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिंग, so therefore that is personality. I mean, why am I saying that it's a mask? A lot of times we are much more deeper than we actually show to other people. So what we do is that we always carry a mask in front of other people.
ठीक है. सो दैट इज हाउ द वर्ड पर्सनालिटी केम फॉरवर्ड टू. इट मीन्स पर्सनालिटी मतलब हमारे यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट कैरेक्टराइजेस अ पर्सन. मतलब हम लोग मैक्सिमम टाइम्स ऐसे ही बिहेव करेंगे, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही सोचेंगे, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही हम लोग इसमें लिखा है जैसे हाँ बिहेव करेंगे, फील करेंगे और थिंक करेंगे. According to Elport, the dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustments to the environment. इसका elaboration हम आगे करेंगे, काफ़ी theories है, so let's not get into this statement. But the personality is the combination of characteristics that makes a person different from others and influence how they think, feel and behave. Again, जो सारी चीज़ें जो हमें दूसरों से अलग करती है वो हमारी पर्सनालिटी हो गई. ठीक है. अभी उसमें क्या है फीचर्स, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन अच्छे से दिया है. इसको मैंने थोड़ा प्रिसाइज तरीके से दिया है बड़े पॉइंटर्स के साथ. सो मीन्स द सेम थिंग. यूनिक, एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी. कोई भी इंसान, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, नो बडी इज सेम, नो बडी इज 100% सेम. कुछ ना कुछ तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है. तो इसी में ही पर्सनालिटी भी आती है कि हमारी पर्सनालिटी दूसरों से अलग है. तो when I say random name, तो just because I know several people with that name does not mean that they all would have the same personality. इसे मैं देखना कौन सा वाला ये पर्सन है, कौन सा वाला वो पर्सन है, let me just think. ठीक है. तो because that is a unique distinct personality that we hold. It is dynamic. Personality changes and develops over time. Very very important. Personality development of a child and personality development of a 25-year-old person and a personality development of a 50-year-old person. ये इवॉल्व होती है, ये चेंज होती है, ये मतलब एक कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती है हमारे पास, कुछ चीज़ें कम हो जाती है. सो दैट इज़ बेसिकली इट इज़ यूनिक, अ डायनामिक. It has psychophysical systems which includes both the psychological and physical aspects. मतलब हमारे बॉडीज भी चेंज होते हैं, हमारी माइंड्स भी चेंज होती है. मतलब स्टेबल रहती है, चेंज होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज कंसिस्टेंट, बट एट टाइम्स हम सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अडॉप्ट करते भी हैं. बिहेवियर शोज मोर स्टेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस. मतलब मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, पर जहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा वहाँ पे हम अपने आप को मोल्ड भी कर लेंगे. सो दैट से ही मैंने इसमें यही चीज़ बैठती है, दैट इज सिचुएशनिज्म. ठीक है. कि हम लोग अपनी पर्सनालिटी को उस सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर लेंगे फॉर अ टाइम बीइंग, बट मोस्ट ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल स्टे कंसिस्टेंट. ठीक है. चलो, सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसमें 2 मार्क में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच. ठीक है. तो अभी टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच. टाइप मतलब मैं आपको बोल दूंगा, टाइप मतलब एक कैटेगरी हो गई जिसके अंदर फिर ट्रेट्स आते हैं. ट्रेट्स मतलब थोड़े स्पेसिफिक हो गए, स्पेसिफिक. तो टाइप इज एन इलैबोरेटेड कैटेगरी और टाइप्स में ही एक ट्रेट्स आते हैं. ठीक है. तो जैसे टाइप और फिर उसमें ट्रेट 1, ट्रेट 2, ट्रेट 3, वैसा. तो जैसे इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है. तो इंट्रोवर्टेड टाइप में शाय आ गया. फिर द पर्सन हु लाइक्स टू बी इन हिज ओन कंपनी, हार्डली टॉक्स और जस्ट मतलब इज नॉट वेरी आउटगोइंग, और द पर्सन हु हैज अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल दे ट्रस्ट फुल्ली. वैसे वाली चीज़ें टाइप के अंदर इतने सारे ट्रेट्स आ गए. तो टाइप का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइज पीपल इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड. बिकॉज इंट्रोवर्टेड के अंदर डिफरेंट ट्रेट्स आते हैं, एक्सट्रोवर्टेड के अंदर डिफरेंट ट्रेट्स आते हैं. और वही ट्रेट डिस्क्राइब्स पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेट्स, डिग्री ऑफ इंट्रोवर्जन. मतलब क्या होता है, मेरे में मैं कितना इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब आई एज अ पर्सन मैं इंट्रोवर्टेड के रेंज में कितना इंट्रोवर्टेड हूँ. सो दैट इज बेसिकली द ट्रेट कि मेरे में सारे ट्रेट्स होंगे
आपके में सारे ट्रेड्स होंगे, पर मेरे और आपके में वही ट्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड टेंडेंसीज में होंगे। से फॉर एग्जांपल मेरे में एक्सट्रोवर्टेड का ट्रेड मैक्सिमम होगा, आपके में एक्सट्रोवर्टेड का ट्रेड उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द ट्रेड अप्रोच जो कंटिन्यूअस मैनर में हम लोग रेट करते हैं। आई माइट बी मोर काइंडर देन यू आर, आई माइट बी मोर जेनरस देन यू आर, ठीक है। सो दैट बेसिकली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेड अप्रोच। वही फिर आता है टाइप में सेकंड, पीपल आर प्लेस्ड इन वन टाइप एंड कैन नॉट बिलोंग टू अनदर। जब एक टाइप में आप एक इंट्रोवर्टेड इंसान को एक्सट्रोवर्टेड नहीं बोल सकते, फिर आपने अगर उस पर्सन को उसी टाइप और कैटेगरी में फिट कर दिया है तो यू कैन नॉट पुट देम इन अ डिफरेंट कैटेगरी। दैट पर्सन इज न्यूरोटिक बट एट द सेम टाइम आई फील दैट ही हैज इमोशनल स्टेबिलिटी। दे आर पार ऑपोजिट्स, दे आर पोलर ऑपोजिट्स जो हम लोग वर्सेस में यूज करते हैं। तो यू कैन नॉट जस्ट से दैट कि वो न्यूरोटिक है पर वो इमोशनली स्टेबल है, बिकॉज दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। वो इरिटेबल होता है तो वो इमोशनली स्टेबल कैसे हो सकता है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेड अप्रोच में पीपल पजेस ट्रेड्स इन वेरिंग अमाउंट। जैसे मैंने आपको बोला, मेरे में और आपके में अगर हम दोनों में इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन मेजर करें तो वो वेरिंग अमाउंट्स में निकलेगा, ठीक है। मेरे में और आपके में साइकोटिसिज्म को मेजर करें तो मेरे और आपके में डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा। सो दैट इज ट्रेड एंड टाइप अप्रोच के बीच में डिफरेंस विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड वुड कम एज अ 2 marker question. Now these are all the type approach theories that I have compiled together. I know it looks a bit cramped, but I just wanted it to be very precise. So you can pause the screen and copy these points down for your understanding. But always remember that NCERT सबसे पहले रीड करो, फिर बाकी की पोर्शंस या फिर जो भी रेफरेंसेस उसको देखो। NCERT is your bible for the preparation of your board examination in all these subjects, especially in humanities, because that's what I have been told and it always used to be like that, ठीक है। Type approaches of personality as a combined question would come as a 6 marker। ये 6 marker question आएगा combined में, और ये individual भी 2-3 markers अपने आप में है, तो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आता है जो टाइप अप्रोच, ये वाला, इट इज़ अ 3 marker क्वेश्चन विच इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव और इंडियन थॉट, जिसको बोलते हैं चरक संहिता। पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन 3 गुनास। गुनास मतलब क्या होती है, क्वालिटीज। इसमें ये गुण है तो गुना क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। तो सत्व गुण, राजस गुण एंड तमस गुण। सत्व मतलब प्योर, काम, ट्रूथफुल, इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन, पीसफुल पर्सन। राजस मतलब एक्टिव एंड रेस्टलेस, एम्बिशियस, अग्रेसिव, प्लेजर सीकिंग पर्सन। राजा एक जैसा इंसान होता है। तमस मतलब लेजी एंड डल, इग्नोरेंट, इनएक्टिव एंड केयरलेस। Every person possesses all 3 gunas, but one guna usually dominates and shapes the personality. Again, जैसे मैंने आपको बोला कि सब लोगों में ये गुना थोड़े थोड़े, मतलब ये क्वालिटी सब में होती है पर सबकी डिग्रीज में वेरिएशंस आ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शाय होऊंगा आपसे, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होऊंगा आपसे, तो ये बेसिकली इसका है। इसमें त्रिदोषा भी आता है और 3 ह्यूमरल कैटेगरीज के उसमें भी आता है, वो आपके एनसीईआरटी में ऊपर इंट्रोडक्शन एक थोड़ा दिया है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट इंट्रोडक्शन, सिंस दैट वाज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने यही चीज़ मेंशन की है। बट वो चीज़ जब आपको पूछते हैं एग्जाम में तो यू हैव टू गिव दैट वन लाइनर आंसर। जस्ट बिकॉज इट इज़ वन शॉट ब्रीफ रिविजन, तो मैंने वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है अभी। ओके, मैंने सेकंड इधर लिखा है, थर्ड इधर लिखा है, चलो कोई बात नहीं, सेकंड अभी इधर जाते हैं। विलियम शेल्डन ने बॉडी टाइप के हिसाब से, जैसे तुम्हारी बॉडी होगी, तुम्हारा फिजिकल बॉडी जैसा होगा, उसके बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड किया है। सो दैट इज एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स, ठीक है। मतलब तुम्हारा बॉडी का शेप जैसा होगा ना, उसके ऊपर से तुम्हारे पर्सनालिटी के फीचर्स होंगे। एंडोमॉर्फ्स आर सॉफ्ट एंड राउंड, सोशलेबल एंड रिलैक्स। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि जो लोग थोड़े हेल्दी से होते हैं, थोड़े गोलू मोलू से होते हैं, वो ज़्यादा ऐसे केयर फ्री होते हैं, रिलैक्स होता है कि अरे इसको तो क्या है, बस खा पी के जलसा करने का, खा पी के मज़े करने का। सो दैट इज़, वो एक नोशन है, दिस नोशन कम्स फ्रॉम दैट। तो ये एंडोमॉर्फिक हो गया कि जो लोग थोड़े राउंड होते हैं, सॉफ्ट एंड राउंड मतलब थोड़े बबली से होते हैं, वो लोग सोशलेबल एंड रिलैक्स पर्सनैलिटीज़ होती है, इवन दो इट इज़ नॉट द हार्ट एंड सोल दीज। एंड हमेशा ये चीज़ याद रखना, ये सारी थियोरीज है, इसको फेस वैल्यू पे लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये सारे अपने आप में सही और गलत दोनों है, इन सबके ही लिमिटेशंस अपने आप में है। बिकॉज एक एक हेल्दी इंसान और एक चबी सा इंसान जो रिलैक्स लगता भी होगा वो इतना रिलैक्स शायद ना भी हो। दे माइट हैव द मोस्ट एंजाइटी इश्यूज दैट यू माइट एवर कम अक्रॉस, बट हम लोगों ने जस्ट बिकॉज ये कैटेगराइज फिट कर दी अपने उसमें, अपने सिस्टम में, दैट डज नॉट मीन दैट दे डू नॉट गो थ्रू एनीथिंग, राइट। फिर मेसोमॉर्फ्स मतलब क्या, दीज आर मस्क्यूलर, मेसो मतलब मस्क्यूलर, एक्टिव एंड असर्टिव। ऑफ कोर्स मस्क्यूलर है तो वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा। सो देयरफॉर ऑब्वियसली असर्टिवनेस गोज विद कॉन्फिडेंस। असर्टिव इंसान तभी बनता है जब वो कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एक्टोमर्स की कैटेगरी। दीज आर थिन, इंट्रोवर्टेड एंड थॉटफुल, दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव बाय द वे। तो वो क्रिएटिव भी होते हैं, ठीक है। तो थिन लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्टेड होते हैं और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, पर सेंसिटिव भी उतने ही होते हैं। मतलब वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉडी टाइप के बेसिस पे होगा। फिर कार्ल यंग ने पर्सनालिटी ओरिएंटेशंस के हिसाब से दो में डिवाइड किया है। एक तो है इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी और दूसरा है एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, ठीक है। तो इंट्रोवर्टेड मतलब शाय, इनवर्ड लुकिंग, एंड एक्सट्रोवर्टेड मतलब सोशल आउटगोइंग पर्सनालिटी, जो एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। सिंस वी हैव डिस्कस दिस एम्पल, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन डिस्कसिंग व्हाट इज इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन ओवर एंड ओवर अगेन। फिर रोजमैन और फ्रीडमैन ने पर्सनालिटीज को डिसीजेस के साथ एसोसिएटेड किया है। मतलब आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, इट्स जस्ट बिकॉज कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, आपको बीपी का प्रॉब्लम है, आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही लेते हो, जिसके वजह से आपका अपने हार्ट को ब्लड इतना पंप करना पड़ता है, जिसके वजह से आपका बीपी हाई रहता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हाई बीपी कंटिन्यूसली रहे, हाइपरटेंशन रहे, तो दैट मीन्स यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग एन हार्ट अटैक। सो दीज आर द पीपल, जैसे मैंने बोला, इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, दे आर सो अचीवमेंट ओरिएंटेड कि वो हमेशा जल्दी जल्दी में रहते हैं। And as a result they become impatient and time pressured, prone to anger and hostility, more prone to BP and CHD, coronary heart disease. मतलब they are more prone to develop heart disease because they are always very very impulsive, irritable nature होता है, बहुत प्रेशर में रहते हैं हमेशा, इसके वजह से इनमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ टाइप बी। टाइप ए जहाँ पे इम्पेशंस दिखाता है, टाइप बी उसमें काम, रिलैक्स, पेशेंस विद इजी गोइंग, patient and easy going, I'm so sorry, less competitive, better at handling stress। मतलब उनका ऐसा लगता है कि थोड़ा शांति से काम हो तो बेटर है, थोड़ा शांति से चीज़ें हो तो बेटर है। मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि दे आर नॉट ऑलवेज इन अ हरी, उनको लाइफ से वो नहीं करना है, दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ, ठीक है। सो टाइप बी इज ऑपोजिट ऑफ टाइप ए। फिर उसके बाद आता है अपनी टाइप सी पर्सनालिटी, विच इज एसोसिएटेड विद कैंसर प्रोन पर्सनालिटी, विच इज डिस्कस्ड बाय मॉरिस, जिसमें पीपल आर कोऑपरेटिव, पेशेंट एंड पैसिव। दे सप्रेस नेगेटिव इमोशन, स्पेशली एंगर। सप्रेशन इज ऑल्सो अ बिट कंसर्निंग। तुम जितना ज़्यादा अंदर चीज़ों को दबाओगे, मतलब not repression, it's suppression. The more you suppress your emotions, one day it will come out in the manner of a volcano, which is going to be even more dangerous. तो therefore वो suppression की वजह से they are more prone to cancer, even though इसमें research is still awaited, इसमें research चल रहा है। and type D is more prone to depression। तो depression के traits आपको अगर आपको पता है तो basically they are shy again, they are the people जो बेसिकली सैड रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं। सो देयरफॉर दीज आर मोर इनटू डिप्रेशन, इवन दो इसका कैटेगरीज आर नॉट येट स्पेसिफाइड, बट या, ठीक है। तो टाइप द टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी रोजमैन और फ्रीडमैन का कैन कम एज अ 4 मार्कर इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल 4 मार्कर है। फिर ये शेल्डन का इंडिविजुअल 2 मार्कर हो गया। फिर ये बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, ये वाला सॉरी 2 मार्कर नहीं है, 3 मार्कर हो गया। इट वुड कम एज अ, इधर लिखता हूँ, इट वुड कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। चलो
अभी टाइप अप्रोच के बाद आता है ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी। एज आई ऑलरेडी मेंशन, टाइप मतलब कैटेगरी होती है, वहीं ट्रेट मतलब स्पेसिफिक ट्रेट्स के बात कर रहे हैं, ट्रेट्स ही एक टाइप में फिट होते हैं, ठीक है। तो ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी 3 टाइप की होती है, जिसमें अपने आप में ही इंडिविजुअल 3 मार्कर्स या 4 मार्कर्स है। एलपोर्ट्स ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी इज अ 3 और 4 मार्कर, कैटल्स ट्रेट पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल 3 मार्कर, इट कुड काउंट, ठीक है। चलो, अभी ट्रेड अप्रोच होता क्या है? The trade approach was given by Gordon Airport. He defined traits as relatively stable and consistent patterns of behavior that makes a person unique. मतलब ये ऐसी चीजें, ऐसी स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें यूनिक बनाती है दूसरों से। ये ऐसे ट्रेड्स है जो हमें यूनिक बनाती है दूसरों से। दैट इज बेसिकली द ट्रेड अप्रोच गिवन बाय गॉर्डन एयरपोर्ट. He says that traits are real and exist within individuals. He classified them into 3 types. ठीक है, कि कितना ट्रेट कितने डिग्रीज में आपके अंदर है उसके बेसिस पे 3 ट्रेट्स आते हैं: कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है। कार्डिनल ट्रेट्स मतलब क्या होता है? कार्डिनल मतलब आपकी लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, वेरी 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 सिग्निफिकेंट ट्रेट्स जो इसमें आपकी लाइफ रिवॉल्व करती है, that is your cardinal traits, dominant traits that are strongly influenced by a person's entire life. तो इसमें जैसे हिटलर्स नासिज्म आ गया, ठीक है, या फिर गांधी जी सत्याग्रह नॉन वायलेंस आ गया, जिसमें उनकी लाइफ पूरी रिवॉल्व करती थी। नहीं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट ट्रेड्स जो जिसको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कार्डिनल ट्रेड्स। लेस सिग्निफिकेंट थोड़े थोड़े, बट स्टिल हम जिससे ये हर एक इंसान में प्रेजेंट हो, ये हम लोग बेसिकली अपने सीवी में बनाने के लिए हेल्प करते हैं। इसको सेंट्रल ट्रेड्स बोलते हैं। These are generalized characteristics found in every person, 5 to traits that describe the personality. मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। तो ये अपने सेंट्रल ट्रेट्स हो गए, ठीक है। तो ये आपके सीवी में काम आता है आपको लिखने में। पर सीवी में फिर उसके बाद लेस कंसिस्टेंट एंड सिचुएशन स्पेसिफिक ट्रेट्स सीन इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। फूड प्रेफरेंसेस और हॉबी, हॉबी हम लोग डालते हैं, पर फूड प्रेफरेंसेस जैसे मुझे मैंगो नहीं पसंद पर मुझे ऑरेंज पसंद, इज समथिंग दैट यू कैन नॉट पुट इट इन एनी सीवी, या फिर तुम्हारी लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है। तो दैट इज सिचुएशन स्पेसिफिक चीज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिसके अराउंड सबकी लाइफ रिवॉल्व करती है इन लोगों की। सेकेंड इज सेंट्रल ट्रेट्स, विच आर जो हमारे कुछ 6-7 ट्रेट्स जो अपने अंदर सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, जो हम अपने सीवी में डाल सकते हैं। एंड सेकेंडरी ट्रेट्स मतलब दीज आर लेस कंसिस्टेंट, मतलब इट माइट चेंज। मुझे 2 साल पहले मुझे 2 साल पहले डेट्स नहीं पसंद थे, पर अब 2 साल के बाद आई कैन टॉलरेट डेट्स टू अ पॉइंट के नाउ आई कैन ईट इट। सो दैट इज लेस कंसिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब इट इज चेंजिंग, तो ये सिचुएशन स्पेसिफिक भी हो जाता है। फिर उसके बाद डेट्स मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट खजूर बाय द वे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैटल्स ट्रेट पर्सनालिटी। कैटल्स, द ट्रेट थियरी वाज फर्दर डेवलप्ड बाय रेमंड कैटल। उन्होंने फैक्टर एनालिसिस को यूज किया था, एक साइंटिफिक मेथड को यूज फैक्टर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड प्रपोज पर्सनालिटीज मेड अप ऑफ 16 सोर्स ट्रेट्स। उन्होंने सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट्स के बारे में बात किया था। सरफेस ट्रेट्स मतलब क्या? देखो, सोर्स ट्रेट्स मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सरफेस मतलब जो हमारे मुंह पे दिखते हैं। तो सरफेस मतलब इजीली ऑब्जर्व बिहेवियर पैटर्न्स अपीयर ऑन द सरफेस, टॉकेटिव और एंग्शियस, लोगों को दिख रहा है कि मैं ऐसा हूँ, तो दैट आर दीज आर सरफेस ट्रेट्स। मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लेता है, सो दैट इज सरफेस ट्रेट्स। और वही सरफेस ट्रेट्स कुछ सोर्स से निकले हुई चीजें हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे वो निकले हुए होंगे, तो देयरफॉर ये आपके हो गए सरफेस ट्रेट्स। आई एम सॉरी, ये आपके हो गए आपके सरफेस ट्रेट्स। दीज आर डीपर एंड मोर फंडामेंटल ट्रेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस ट्रेट्स। मैं क्यों इतना टेंशन लेता हूँ? बिकॉज अंदर मेरे कुछ चल रहा होता है कि अगर मैं अंदर से आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस, आई एम फीलिंग वेरी प्रेशर्ड, तो देयरफॉर वो एंशियसनेस मेरे चेहरे पे दिखती है। तो ये क्या है? मेरे प्रेशर इज माई सोर्स ट्रेट। आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी इरिटेबल, आई एम फीलिंग वेरी अंदर से वेरी वेरी नॉट गुड, तो दैट इज बेसिकली कमिंग ऑन द सरफेस, ठीक है।
तो ये डीपर है बहुत ज़्यादा. आइडेंटिफाई विद इन द 16 बेसिक पर्सनालिटी फैक्टर्स मेजर्ड बाय 16 PF पर्सनालिटी टेस्ट डेवलप्ड बाय रेमंड कैपिटल. He believes that personality can be scientifically measured through underlying source traits. ठीक है, तो सोर्स मतलब डीपर लेवल पे होता है, इसको आप बिल्डिंग ब्लॉक्स डाल दो. सोर्स मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स और सरफेस मतलब विच इज विजिबल टू अदर्स. ठीक है, तो ये भी आपका इंडिविजुअली 3 मार्कर में पूछ सकते हैं. इसमें फैक्टर एनालिसिस लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू राइट. अब इसके बाद तीसरा आता है, इसमें बाय द वे एक टेबल है 5 फैक्टर थियरी. तो 5 फैक्टर थियरी टेबल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव नॉट मेंशनड इट, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट ओवर हियर, बट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जस्ट if I could I will make a video of it and explain also, but do see that वो table बहुत ज़्यादा important आता है as a 6 marker और 4 marker. तो just do that table. मैं लिख रहा हूँ NCERT table under trait approach. ठीक है, I don't remember the page number, so please go through the page. ठीक है, जिसमें 5 factor theory है. ये आपका हो गया इंडिविजुअल 4 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, फिर आता है आइसेंक्स ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी, मतलब इसमें EPQR जो बहुत स्कूल्स में करवाते हैं. The theory was given by Hans Eysenck. He believed that personality is based on biological factors and can be measured and scientifically using factor analysis. उन्होंने भी यही चीज़ को बोला था. तो उसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज दी थी, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशलिबिलिटी होता है इसमें. सोशलिबिलिटी, सोशलिबिलिटी. ठीक है, extroversion versus introversion I have amply explained, so I'm not going to go into that. Neuroticism versus emotional stability, ये basically verses हैं, ये verses हैं. अभी न्यूरोटिक पीपल कौन होते हैं? न्यूरोटिक पीपल मतलब क्या, बहुत टची होते हैं, बहुत एंक्शियस होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत मूडी होते हैं. अब मतलब और मतलब उनको आप कुछ ट्रिगर, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा कर जाती है और ट्रिगर करने से उनका मूड एकदम जल्दी चेंज हो जाता है. सो देयरफॉर दीज आर हाईली न्यूरोटिक पीपल विच इज़ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक. जिनमें इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, मतलब लो न्यूरोटिसिज्म जिसमें होता है, दीज आर काम एंड स्टेबल पीपल, दे कैन कंट्रोल देयर इमोशंस प्रॉपर्ली. ठीक है, एंड दे आर नॉट टची, they do not get triggered very easily, so they know how to control their emotions, so these are more emotionally stable people. ठीक है, फिर आपका आता है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशलिबिलिटी. साइकोटिसिज्म मतलब दीज आर अग्रेसिव, कोल्ड एंड ईगोसेंट्रिक पीपल. उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए. वो कोल्ड का मतलब क्या होता है, वो दूसरों की फीलिंग से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब बहुत कोल्डली रिस्पॉन्ड करते हैं. आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो कुछ रिएक्शन देंगे, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द ट्रूथ दैट दे विल गिव अ रिएक्शन. एंड लो साइकोटिसिज्म का मतलब क्या होता है, दीज आर सोशलेबल, जिसमें दिख रहा है दीज आर काइंड एंड फ्रेंडली पीपल, एंड दे आर एम्पैथेटिक पीपल एज वेल, जो दूसरों की फीलिंग्स को ईजिली समझ सकते हैं. ऑल 3 डायमेंशंस कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स. सो दैट इज वेयर हम लोग अपना ट्रेट अप्रोच एंड करते हैं. तो वी हैव सीन टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनालिटी. Next is very interesting and important thing, psychodynamic approach, which was given by Mr. Sigmund Freud. By the way, मैंने जो चैप्टर में स्टार्टिंग में रखा है ना, द इंट्रोडक्शन, द पेज, हाँ, दिस गाय, ये वो है मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड, उसका कार्टून है ये. वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड रेडिकलिस्ट पर्सन, बट उनके थियोरीज वर काफ़ी कॉन्क्रीट, जो हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं. Very controversial. Why? Because इसका elaborated video I will make, because I love this topic to talk about. So basically his main things where he concentrated more was that
कि हमेशा एक एक पर्टिकुलर इंसान की जो लाइफ है वो सेक्सुअल डिजायर्स एंड अग्रेसिव टेंडेंसीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड एज अ रिजल्ट हमारे अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं जो जिससे हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो अनकॉन्शियस मटेरियल को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो देयरफॉर ही यूज डिफरेंट मेथड्स जिससे हम लोग अनकॉन्शियस के अंदर घुस सकते हैं, जैसे ड्रीम एनालिसिस, फिर फ्री एसोसिएशन हो गया, ठीक है। ये सारी फिर हम लोग जो स्लिप ऑफ टंग एंड डार्क ह्यूमर से भी चीज़ों को निकाल सकते हैं बाहर। दैट इज़ बेसिकली व्हाट ही यूज्ड टू डू। सो उनकी एक थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है जो आपके सिलेबस में डिलीट हो गई है पर हमने पढ़ी हुई थी, विच इज़ साइको एनालिसिस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थियरी जिससे वो अनकॉन्शियस मटेरियल को बाहर निकालते थे और वही अनकॉन्शियस मटेरियल को एनालाइज करके बेसिकली एक पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसलिए ही उन्होंने दिया था फर्स्ट एक लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। The psychodynamic approach was proposed by Sigmund Freud. He believed that much of our behavior is influenced by unconscious forces and internal conflicts that we have, जो शायद हमें पता भी नहीं होती है, but still it goes on inside our mind. Unconscious, conscious, प्री-कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस मतलब क्या? थॉट्स एंड फीलिंग्स जिसके बारे में हमें पता है। द फीलिंग्स, द इमोशंस, द थॉट्स वी आर अवेयर ऑफ is basically our conscious. What are you thinking right now? I am consciously teaching you right now. मैम मेरे हाव भाव एकदम इंटैक्ट है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सो दैट इज बेसिकली द कॉन्शियस थिंग। आपके हिसाब से हाउ यू आर कॉन्शियस राइट नाउ? बिकॉज यू आर कॉन्शियसली वॉचिंग मी गिविंग यू अ लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. You're consciously watching the slides, scrolling over here and reading the points out. So that is the conscious things which are happening inside you right now, जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है। प्री कॉन्शियस मतलब इंफॉर्मेशन एंड नॉट इन इमीडिएट अवेयरनेस बट कैन बी इजिली ब्रॉट टू माइंड। मतलब अभी आप उसके अवेयरनेस में अभी प्रेजेंटली नहीं होंगे, पर अगर आपको रिमाइंडर देंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। जैसे आपको अचानक से समटाइम ऐसा नहीं बोलते रिमेंबर द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू दिस, तो फिर ओ हाँ वो पर्टिकुलर टाइम हम ऐसा करते थे। तो दैट इज प्री कॉन्शियस। योर फोन नंबर और रीसेंट मेमोरी कैन कम इनटू दिस एग्जैक्टली। जैसे तुम अभी उसका कुछ काम नहीं है तो यू आर नॉट यूजिंग दैट थिंग, बट फिर अगर तुम्हें कोई रिमाइंड करवाएगा तो ऑब्वियसली जैसे तुम्हें बोलेंगे कैन यू प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, तो तुम हाथ करके फोन नंबर, पर कॉन्शियसली तुम फोन नंबर ही पूरा टाइम नहीं बोलते रहोगे ना। सो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ प्री कॉन्शियस. What is most concerning for Sigmund Freud is unconscious. By the way, levels of consciousness, very, 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 very important 3 marker question. I forgot to write. इसमें unconscious को elaborate करना भी बहुत important है. It contains our hidden desires, wishes, and painful memories, influences behavior without our awareness. He compared the mind into an iceberg when unconscious is the largest hidden part, which is the reservoir ऑफ आर नीड्स। एक स्टोरेज है अपनी अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स के बारे में, जिसमें हमेशा हम लोग स्ट्रगल करते हैं टू रियलिस्टिकली एंड अप्रोप्रिएटली उसको एक्सप्रेस करने के लिए। दैट इज बेसिकली आर अनकॉन्शियस मटेरियल, जिसके बारे में हम अवेयर भी शायद नहीं हैं, पर अगर एनालिसिस किया तो बहुत सारी चीज़ ऐसी निकलेगी जो हम चाहते हैं कि हो। तो अगर होगा ये चीज़ तो माइट भी अंदर से हमारा अनकॉन्शियस वुड बी अ बिट स्टेबल, बट ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। ऑब्वियसली वो अनकॉन्शियस से आती है और कहीं ना कहीं वो इतना डीप रूटेड है कि बहुत जल्दी वो बाहर नहीं आता, पर वो हाँ एवरीडे बेसिस पे आप कॉन्शियसली बाहर नहीं लाओगे पर वो आपके बिहेवियर में दिख जाएगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली रिजर्वायर। तो अकॉर्डिंग टू हिम हमारे अनकॉन्शियस में मोस्टली हमारे सेक्सुअल डिजायर्स ही होते हैं, जिसमें एक पर्सन रियलिस्टिकली स्ट्रगल्स टू एक्सप्रेस दो सेक्सुअल डिजायर्स इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ टैबू विच इज देयर नो कि स्पेशली अगर हम लोग हमारे कंट्री की बात करें, जैसे ठीक है अभी इट्स चेंजिंग बट it's very controversial and it's very very मतलब there's always the aspect of consent, there's always an aspect of way in which it could be expressed. तो हम लोग ऐसे ही उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जितना ज़्यादा ये रिप्रेस होता रहता है, जितना ज़्यादा अंदर दबता रहता है, सप्रेस होता जाता है, उतना ज़्यादा इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द अनकॉन्शियस। चलो
structure of personality, very 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 important, again very important 3 मार्कर क्वेश्चन जिसमें आपका आएगा ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसमें लिबिडो का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसमें मेंशन मैंने किया नहीं है शायद, बट लिबिडो इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच बेसिकली द लाइफ इंस्टिंक्ट, उसको लिबिडो बोलते हैं। the id that drives us, that id force that drives us to live is basically our libido, ठीक है। तो it is id मतलब present since birth, it operates on the pleasure principle, which is immediate gratification of desires. Every single child is born with id. ईगो एंड सुपर ईगो डेवलप्स ग्रेजुअली। ईड मतलब हमारे इम्पल्सेस होते हैं, ईड मतलब हमारे इम्पल्सेस होते हैं, हमारे अर्जेस भी बोल सकते हो, हमारे अर्जेस भी होते हैं जो हमें करने का अंदर से एक डिजायर, एक चाहत आती है, मन करता है कुछ करने को, जिसका मेन गोल इज टू सीक प्लेजर। इमीडिएट प्लेजर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। you might have seen a small baby or a child having that grabbing tendency without asking, तो उनको सिखाना पड़ता है when they grow up कि whenever you want to take something from the other person you have to ask them, but till then वो अपने ईद के हिसाब से ही reactions देते हैं। So that is basically the ईद which operates on the pleasure principle. Pleasure principle अगर नहीं लिखोगे तो marks कट हो जाएंगे। It means to immediately go into gratification to avoid pain, ठीक है। फिर ego मतलब it develops and balance id and reality which develops gradually, जो id को realistic expression देता है। So it goes on realistic principle, decides what is practical and socially acceptable. It is socially acceptable for a child कि whatever he wants to ask from the other person, from the mother, from the father, or from his or her friend, you need to ask for that thing in the first place. अगर वो चीज़ के बारे में आप नहीं पूछोगे तो obviously and you are grabbing it or you are trying to snatch it off, that is wrong behavior, ठीक है। तो मतलब एक रियलिस्टिकली, एक सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में ईगो आपको ईद को प्लेजर देने में हेल्प करता है, ठीक है। और सुपर ईगो मतलब क्या होता है? सुपर ईगो मतलब इट रिप्रेजेंट्स द मॉरल, द पेरेंटल अथॉरिटी, अगर हम लोग जो बोले ना, क्लियर पेरेंटल अथॉरिटी, ये हमारे अंदर ही प्रेजेंट होती है कि हमें बताता है कि मोरालिटी बेसिस पे काम करवाता है हमें। एंड आइडियल्स वर्क्स ऑन द मॉरल प्रिंसिपल, जजेस राइट एंड रॉन्ग, एक्ट्स लाइक कॉन्शियस, conscience, acts like our conscience. The ego balances the demands of id and super ego and reality. मतलब हमें जैसे बेसिकली moral, it is right to be respectful, but it is wrong to be disrespectful. It is morally correct to raise voice against wrongdoings. तो मतलब अगर तुम आवाज उठाओगे फॉर समथिंग विच इज हैपनिंग रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, तो ये मोरालिटी प्रिंसिपल हो गया। तो जो भी आपने ईगो पे रिएक्शन दिया है, इज इट अप्रोप्रिएट रिएक्शन, इज व्हाट इज गाइडेड बाय द सुपर ईगो। तो ईगो एक मिडल ग्राउंड है, सुपर ईगो और ईद उसके इर्द गिर्द है, तो ईगो उनके बीच में बैलेंस बनाता रहता है, ठीक है। तो हमें सुपर ईगो बताएगा कि इज इट मॉरली करेक्ट टू ask for an ice cream from that person, अगर नहीं, I don't think so because I think he or she is in need, so I think I should control my id, ठीक है। तो वो क्या हुआ, बेसिकली आपका मोरालिटी प्रिंसिपल सोचने में आपको मजबूर करेगा कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम, एंड वो फिर आपकी ईगो को कंट्रोल करेगा, और वो बेसिकली ईगो से ही वो सुपर ईगो निकलता है, और फिर उसके बाद ईग को इस बेसिस पे कंट्रोल करवाता है। तो रियलिस्टिकली आप सोच रहे हो मतलब क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल, ईगो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये राइट है या रॉन्ग है। राइट है या रॉन्ग है मतलब वो सुपर ईगो हो गया, तो देयरफॉर आप अपनी ईड को कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो दैट इज देयर इन द केस ऑफ ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ईड प्लेजर प्रिंसिपल पे जाता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे जाता है, एंड सुपर ईगो सोशल ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे जाता है। मोरालिटी हमें राइट और रॉन्ग सिखाती है, ईड हमें एक्सेप्टेबल मैनर में अपने
ईगो अपने एक्सेप्टेबल मैनर में अपनी ईद को एक्सप्रेस करने को देता है, और ईद मतलब हमें इम्पल्स पे रिएक्शन करने को देता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना, ही एक्ट ऑन हिज इम्पल्सेस, मतलब ही डिड नॉट थिंक ऑफ ईगो और सुपर ईगो, उसने मोरालिटी वगैरह सब छोड़ दिया। तो हमें जैसे से फॉर एग्जांपल मन करे कि किसी के ऊपर में बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज ऑफ एन अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ यू, से फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय इज वेरी एंग्री एट हिज बॉस राइट नाउ, वो ऊपर बॉस उसको बहुत सुना रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसने अपनी इम्पल्सिस पे एक्ट करके, ईड पे एक्ट करके उसने जोर से झापड़ मार दी उसके बॉस को। तो दैट मीन्स द ईड बेसिकली, उसने अपनी अथॉरिटी दिखा दी। ईड वॉज द सुपर पावर राइट नाउ, it was empowering the ego, even though he knew that it will be very very bad in consequences, but still a lot of times people act on their id. Iska elaborated talks I will give in the next video, because in a good video, not next video, I will make a video about it because it is a very interesting topic. I would love to discuss this. फिर उसके बेसिस पे ही आते हैं अपने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, जो हम लोग अनकॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं अपने अंदर। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द ईगो टू रिड्यूस एंजाइटी caused by conflicts between ego and super ego. These are all those things जो हमारा ईगो यूज करता है अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, और हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं, इट डज नॉट अकर कॉन्शियसली। तो दैट इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। पर ये कॉन्शियसली है या नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल है। सिगमंड फ्रॉइड ऐसा बोलता था कि अनकॉन्शियस है, मतलब हम लोगों को पता नहीं चलता पर हम लोग एक्ट करते हैं, बट a lot of times it might be conscious, you never know. They protect the individual from guilt, stress and guilt, ठीक है। important defense mechanisms according to, हाँ, by the way structure of personality I hope I've given you, it's very important। हाँ, ego defense mechanism very 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 important। 4 मार्कर, 6 मार्कर, इसमें इंडिविजुअल 2 मार्कर्स भी पूछते हैं, सो मतलब, और यहाँ फिर इसमें से ही एक्सपेक्ट मैक्सिमम काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बाय द वे, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आता है रिप्रेशन। अनप्लेजेंट थॉट्स और मेमोरीज आर पुश्ड इनटू द अनकॉन्शियस। जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती उसको हम लोग दबा के अपने मेमोरीज को सब कुछ अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। वो हम डालते हैं, खुद से होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब पुटिंग एवरीथिंग अंडर द कारपेट इज बेसिकली डिप्रेशन, ठीक है। डिनायल, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी और फैक्ट्स। denial basically comes into the aspect of putting under the carpet, I'm sorry। denial मतलब क्या? जैसे it is very, again, जैसे एक somebody's loved one dies immediately, by God's grace nothing happened, पर किसी का एक बहुत ही close इंसान अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, तो lot of times people cannot fathom the fact that something has happened। they feel that कि वो इंसान अभी था और अभी कैसे नहीं है, तो they just deny कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आई डोंट एक्सेप्ट दैट दैट पर्सन इज नो मोर, सो दैट इज डिनायल, ठीक है। या फिर अगर हम लोग नॉर्मल केसेस में बोले तो होमवर्क दिया है पर हम भाव ही नहीं दे रहे, तो दैट इज डिनाइंग, ठीक है। कि होमवर्क दिया है, आई डोंट केयर, मतलब मैं डिनाई कर दिया कि ऐसा भी कुछ होता है, चीज़ है, हट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है करके। फिर प्रोजेक्शन, अपने खुद के इनर फीलिंग्स को, अनवांटेड फीलिंग्स को हम बाहर पे दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, खुद की अग्रेसिव टेंडेंसीज को बाहर दिखा देते हैं। जैसे से मतलब मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है, पर मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि लोग मुझ पे गुस्सा करता है ना, इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ लोगों पे। तो दैट इज क्लासिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जैसे मेरे खुद के अंदर से कोई भी अनफुलफिल्ड फीलिंग्स होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें होती है जो मेरे अंदर दब के रह गई है, तो मैं दूसरों में देखने लगता हूँ, और फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि जस्ट बिकॉज दूसरों ने मेरे साथ ऐसा किया तो इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया। सो दैट इज प्रोजेक्शन। तो इसमें हमें वी हैव डन रिजेक्शन, डिनायल, प्रोजेक्शन। अभी रैशनलाइजेशन, गिविंग लॉजिकल एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई बिहेवियर। लॉजिकल एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई बिहेवियर मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल ट्राइंग टू गिव लॉजिकल एक्सक्यूजेस, इवन दो इसमें लॉजिकल लिखा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो लॉजिकल होता है। I couldn't score marks because I was not using my favorite pen. That is rationalization that people give। और मतलब
मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट थे, इसके वजह से मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं की। अभी ठीक है, मतलब ये लॉजिकल भी हो सकता है, बट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट हमेशा ही हम लोग जस्ट दूसरों पे ब्लेम कर देना जैसे बोल दिया, सो दैट इज़ रैशनलाइजेशन। हम फालतू के जस्टिफिकेशंस देते हैं कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ रैशनलाइजेशन। और जितना ज़्यादा आप जस्टिफाई करोगे ना, उतना पता चल ही जाएगा कि मतलब यू आर हाइडिंग समथिंग। रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग द ऑपोजिट ऑफ वंस ट्रू फीलिंग। इसमें टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है आपके कि अ पर्सन गेटिंग इनटू अ रिलीजन थिंग टू हाइड हिज ओन सेक्सुअल अर्जेस, तो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया, जैसे जैसे एक हाइपोथेटिकल केस में अ पर्सन मर्डर समबडी आउट ऑफ एंगर, बट टू हाइड दैट एंगर एंड गिल्ट, वो क्या करता है उसके ऑपोजिट में, ही गेट्स इनटू सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस एट टू अ पॉइंट कि वो दूसरों का सिर्फ भला ही करने लगता है अचानक से। तो उसने क्या किया, उसके खुद की गिल्ट और शेम को हाइड करने के लिए ही इज डूइंग एन ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ हिज इनर इंस्टिंक्ट वेयर ही मर्डर्ड समबडी, ठीक है। सो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये सारे इंडिविजुअल, जैसे मैंने बोला, इंडिविजुअल 2 मार्कर्स हैं, और अपने आप में ही ये पूरा इंडिविजुअल 4 या 6 मार्कर पूछ सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर उसके बेसिस पे वी विल गो टू साइकोडायनामिक स्टेजेस ऑफ, सॉरी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी। व्हेन आई से साइकोसेक्सुअल, according to Sigmund Freud, at every stage of our life there is some kind of a sexual desire that is getting into the unconscious। तो वही सेक्सुअल डिज़ायर के हिसाब से ही उन्होंने 5 स्टेजेस दिए थे। एक है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज, ठीक है। तो फिर इसमें ओरल स्टेज में आता है विच कम्स बिटवीन 0 to 1 year, एनल स्टेज कम्स बिटवीन 1 to 3 years, फेलिक स्टेज विच कम्स बिटवीन 3 to 6 years, latency comes between 6 years and above, and genital comes under puberty। तो ओरल में बेसिकली क्या हो गया, ओरल स्टेज बेसिकली ऐसा जिसमें द प्लेजर सीकिंग एरिया इज माउथ, ठीक है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बेबीज होते हैं ना बेटा, बेबीज के केस में इफ यू बैबल देम कॉन्स्टेंटली करवाओगे या फिर उनको अपने पैसिफायर दे देते हो, उनको माउथ में बहुत प्लेजर मिलता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, व्हाई इट इज प्लेजर, बिकॉज माउथ इज द ओनली सोर्स फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग फूड। तो फूड मतलब बेसिकली हाउ दे आर गेटिंग फूड, बाय ब्रेस्ट फीडिंग। सो ऑब्वियसली बाय सकिंग the nipple from the breast is basically, तो इसके वजह से according to him the mouth is the most pleasurable area। Inflamed pleasure is centered in the mouth where sucking, swallowing and biting। A small child also is very उसको बाइट करना भी बहुत पसंद है। जैसे आई हैव सीन वीडियोस वेयर innocently a small child is basically trying to bite the nose of their parents, ठीक है। The child depends completely on the mother for satisfaction in terms of food। तो ये भी उसने सेक्सुअलाइज कर दिया था। अभी इसमें फिक्सेशन भी हो सकता है, फिक्सेशन ऑफ ओवर डिपेंडेंस, स्मोकिंग, नेल बाइटिंग, ओवर ईटिंग। बिकॉज ये प्लेजर माउथ से इतना सारा मिल रहा है ना, तो लोग स्मोक करने लगते हैं इसके चक्कर में, या फिर नेल बाइटिंग करने लगते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली, उनको प्लेजर अपने माउथ से मिल रहा है इसके वजह से। फिर एनल विच कम्स बिटवीन 1 to 3 years वेयर प्लेजर इज फोकस्ड ऑन बाउल और ब्लैडर कंट्रोल, टॉयलेट ट्रेनिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है बेसिकली, उनको बाउल मूवमेंट करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब इन अ वे टू बेसिकली यूरिनेट और टू बाउल मूवमेंट का मतलब होता है टू एक्सक्रीटा, हमारा जो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। सो दैट इज बेसिकली द फीसीज, नॉट एक्सक्रीटा, द फीसीज वाला एस्पेक्ट। तो इजेशन करना उनको बहुत मज़ा आता है। तो इसके केस में उनको सबसे ज़्यादा टॉयलेट ट्रेनिंग की ज़रूरत 1 to 3 years के बीच में आती है, जहाँ पे बेसिकली द चाइल्ड इज ट्रेन्ड to tell the parents that they want to go to washroom instead of doing it while they are sleeping या फिर ऐसी चीज। स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, स्टबर्न, रिजिड, एनल रिटेंशन, लीनियंट ट्रेनिंग, केयरलेस, मेसी, एनल एक्सक्लूसिव। ये भी बहुत, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट ये फिक्सेशन स्टेज कर सकते हैं। देखो, अगर ज़्यादा स्ट्रिक्टली ट्रेन करोगे तो फिर वो लोग बेचारे फ्रीली अपने एनल सेटिस्फैक्शन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे हाइजीन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो दैट कैन लीड टू अगेन ब्लैडर प्रॉब्लम्स हो सकती है इससे।
और फिर अगर से फॉर एग्जांपल लीनियंट हो गया तो फिर हाइजीन की कोई वो ही नहीं होगी, वो कैसे भी कहीं पर भी जाएंगे कुछ भी करके आ जाएंगे, एंड दे विल बेसिकली क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स व्हेन इट कम्स टू एनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है। फिर आता है फेलिक स्टेज, जिसमें which happens between 3 to 5 years, जिसमें मैंने नेक्स्ट पेज में थोड़ा एलाबरेट किया है। Child becomes aware of gender differences, develops Oedipus or Electra complex, and conflict identifies with the same sex parents, guilt, confusion and sexual roles and vanity। बहुत ही controversial but it is true। इस स्टेज में a child develops sexual feeling according to Sigmund Freud towards the same, sorry, towards the opposite gender पेरेंट। जैसे अगर बॉय होगा तो बॉय को उसकी मम्मी की तरफ फीलिंग्स आएंगे, और अगर एक गर्ल होगी तो उसको पेरेंट्स उसके पापा की तरफ फीलिंग्स आएंगे। ठीक है। तो वो हमेशा क्या करते हैं, उनको लगता है कि उसका जो सेम सेक्स पेरेंट है वो उनके साथ कंपटीशन में है। तो जैसे अगर पापा पापा मम्मी के साथ बात कर रहे हैं पर बॉय को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा को इतना सारा प्यार देती हूँ, उनके ऊपर ही ध्यान देती हूँ, उनके साथ ही बात करती है, मेरे साथ बात नहीं करती। सो दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। So if a dad tries to hug like his mom, the child basically pushes the father away and he's like, she's my mom, I want to marry her करके। तो that is classic Oedipus complex। बहुत सारे फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में वही होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में a girl child has insecurity towards her own mother because mother is giving attention to the father। तो इसका रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर बाय 6 years दे बेसिकली अंडरस्टैंड दैट उनकी रिलेशनशिप कैसी है और हमारी रिलेशनशिप कैसी है। अगर नहीं होता है तो फिर इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर इवन किलिंग एंड मर्डर ऑफ द पेरेंट्स आल्सो कैन टेक प्लेस। फिर latency stage is not puberty, while it's in puberty it's not puberty। latency basically अच्छा 6 to puberty, I'm so sorry, ये सही लिखा हुआ है, it is between 6 to puberty, this is ये सही है भाई ज़रा। तो ये 6 to puberty तक का पीरियड होता है जहाँ पे सेक्सुअल अर्जेस मर जाते हैं, जहाँ पे मेन फोकस फिजिकल डेवलपमेंट पे होता है। तो आपने देखा होगा दैट बॉयज बेसिकली enjoying their time with the other boys and girls enjoying their time with girls। तो ग्रुप बनते हैं, वो लोग खेलते हैं वगैरह वैसी चीज़ें। फोकसेस शिफ्ट्स टू स्कूल, हॉबीज एंड peer relationships। Energy is channelized into learning new skills, usually no fixation, development of social and intellectual skills। एंड लास्ट आता है जेनाइटल स्टेज, दैट इज प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। ये मतलब बेसिकली 6 to 11 और 12 डिपेंडिंग अपॉन विच जेंडर पर में। एंड प्यूबर्टी स्टेज बेसिकली जहाँ पे हम लोग अपने सेक्सुअल अर्जेस का रियलाइजेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड वी गेट अट्रैक्टेड टू द अपोजिट जेंडर or opposite sex because sex and gender are different। Sexual interests reappear in mature form, focuses on forming healthy relationships and contributing to the society। Successful resolution leads to balanced personality, unresolved issues may cause relationship problems। ये वाला important नहीं है इतना, पर puberty में you need to understand that there is an attraction towards the opposite sex। ठीक है। and as a result we try to form relationships with them। तो इसी टाइम पे क्रश होता है, इसी टाइम पे आपको फर्स्ट लव होता है। सो दैट इज जेनाइटल। एंड ये प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स है, मतलब इट गोज ऑन फ्रॉम, फिर उसके बाद प्यूबर्टी के बाद यंग एडल्टहुड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। फिर उसके बाद एक बेसिकली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स एज आई वाज एक्सप्लेनिंग। ओडिपस मतलब a boy's unconscious sexual desire for his mother, jealousy towards the father। इसमें फेलिक स्टेज अपने आप में ही एक 3 मार्कर है बाय द वे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। An Electra complex, a girl's unconscious sexual desire for her father and jealousy towards her mother during the phallic stage। ठीक है। तो Electra and Oedipus are actually historical figures where Oedipus basically was the king who killed his father to marry his mother, and Electra basically by with the help of her brother he tried to kill her mother, she tried to kill her mother so that she could marry her father। तो इनके केस में क्या होता है, आपने देखा होगा ऑफन टाइम्स गर्ल्स के केस में स्पेशली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जब उनको हो रहा होता है
दे ट्राई टू इमिटेट देयर मदर्स बिहेवियर टुवर्ड्स देयर फादर। तो अगर पापा ऑफिस जा रहे हैं तो जैसे मम्मी पानी देती है तो लड़कियां भी पानी देने जाएगी। फिर अगर मम्मी पापा के साथ फ़ोन पे बात करिए तो दे विल ट्राई टू इमिटेट देयर मदर्स टॉकिंग टू देयर फादर्स। तो ये बहुत क्यूट स्टेज होता है, बट this cuteness can turn into something else also, which can lead to these stages of fixation and regression. फिक्सेशन मतलब आपके कुछ रिजोल्यूशंस नहीं हो पाते हैं तो आप वही स्टेज पे अटक जाते हो। से फॉर एग्जांपल अगर जेलेसी अपने सेम सेक्स पेरेंट्स की तरफ नहीं गई तो द चाइल्ड माइट get fixated and it can create a lot of relationship problems between the parents. इश्यूज बहुत सारे आ सकते हैं एंड इसको अगर केटर नहीं किया गया तो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो व्हेन अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट एट द साइकोसेक्सुअल स्टेज कॉजेज अ पर्सन टू रिमेन स्टक एट दैट स्टेज। एंड रिग्रेशन मतलब गर्ल रिटर्निंग टू बिहेवियर्स ऑफ एन अर्लियर स्टेज व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेस और एंजाइटी। गलती से भी कोई भी एक स्टेज में ऐसा हो जाता है, ये बाय द वे दोनों टू मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से भी कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो जाता है जिसके वजह से एक स्टेज में वो प्रोग्रेस कर गए, पर उस प्रोग्रेस में उस स्टेज में बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी आती है तो फिर वो पहले वाले स्टेज में चले जाते हैं अनकॉन्शियसली एंड वो बिहेवियर्स वैसे फिर दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन इज गोइंग बैक टू द फॉर्मर स्टेज। ठीक है, तो ये हो गया अपना साइकोसेक्सुअल स्टेजेस विच कम्स एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 6 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर आता है पोस्ट फ्रॉइडेंस। पोस्ट फ्रॉइडेंस आर बेसिकली ऑल दोज पीपल हु ट्राई टू फॉलो द path of Sigmund Freud, or basically they followed the path of Sigmund Freud but they had their own ways of basically expressing the theories, और उन्होंने बहुत रियलिस्टिकली बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके अपनी खुद की थियरीज निकाली, इसलिए उनको न्यू फ्रॉइडन्स भी बोलते हैं और पोस्ट फ्रॉइडन भी बोलते हैं। पोस्ट फ्रॉइडन मतलब आफ्टर फ्रॉइड। ठीक है, जिन्होंने उन्होंने अपना माइंड एक्सपैंड करके बियॉन्ड सेक्सुअल एंड अग्रेसिव टेंडेंसीज, सोशल टेंडेंसीज एंड बायोलॉजिकल टेंडेंसीज को भी इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, चलो अभी फर्स्ट आता है उसमें कार्ल यंग, जिसमें हाँ हर एक ये सारे इंडिविजुअल 3 मार्कर्स है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, दैट मीन्स ये इंडिविजुअल 3 मार्क में है। पोस्ट फ्रॉइडेंस आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क एज अ 6 मार्कर, बट यू नेवर नो, तो प्लीज डू लर्न इट। कार्ल यंग्स, it's not Jung, it's Young, कार्ल यंग्स एनालिटिकल साइकोलॉजी। कार्ल जंग एनालिटिकल साइकोलॉजी, उसमें वो क्या बिलीव करते थे? He believed that personality consists of ego, personal unconscious, and collective unconscious. Collective unconscious consists inherited memories called archetypes. Also, propose introverted and extroverted types emphasize on interest of unconscious core. अच्छा हाँ सॉरी, इधर तक ही था, मैंने गलती से नेक्स्ट वाला रीड कर दिया, ये वाला जो है। तो वो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से एनालिटिकल साइकोलॉजी में, कि हमारी पर्सनालिटी जो डेवलप होती है, दैट पर्सनालिटी बेसिकली गेट्स डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द ट्रेट्स दैट वी हैव अनकॉन्शियसली इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो ये अपने रिचुअल्स में दिखेंगे, अपने आर्केटाइप्स में दिखेंगे। ठीक है, आर्केटाइप्स आर प्रीमॉर्डियल विजुअल इमेजेस। ठीक है, फिर गॉड एंड गॉडेसेस में दिखेंगे। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ आवर पर्सनैलिटी। जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब क्या, कि जैसे ये ऐसा चीज़ है जो सबके अंदर अनकॉन्शियस में प्रेजेंट है। इट इज़ इन द अनकॉन्शियस ऑफ ऑल द इंडियन चिल्ड्रन to respect their elders or to bow down towards their elders. So that is collective unconscious, अगर तुम्हें एग्जांपल दूँ तो। फिर एल्फ्रेड एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ही emphasized on social interests and conscious goals, proposed that people feel inferiority in childhood and strive for superiority or perfection, introduces the concept of inferiority complex. उन्होंने बेसिकली एक चीज़ की बात की थी, इन्फीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही हम बोल सकते हैं, कि हम लोग हमेशा ही अपने वी शुड बेसिकली एम्फसाइज ऑन आवर सोशल इंटरेस्ट एंड गोल्स। हम लोग जब छोटे होते हैं ना, या फिर व्हेन वी आर इन अ ग्रोइंग स्टेज इन आवर स्कूल, वी फील मोर ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देन अदर्स।
अभी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपने आप को हमेशा ही नीचे रखना और दूसरों को ऊंचा देखना। नीचा ऊंचा मतलब वी सी आवरसेल्व्स डाउन टू अदर पीपल, दैट इज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। and strive for superiority or perfection, he introduced the concept of inferiority complex. अगर ये resolve नहीं हुआ तो it can lead to self esteem issues, जिसमें फिर future में अगर इतनी inferiority complex होगी ना तो they might not be able to get independent or be responsible when they would have to start working in the future. फिर कैरन हॉर्नाई का social and cultural approach, सोशल एंड कल्चरल अप्रोच, जिसमें कैरन हॉर्नाई ने बेसिकली पूरे के पूरे जो फ्रॉइडन्स थियरी है, फ्रॉइडन्स थियरी को उन्होंने कम्प्लीटली नेगेट कर दिया था, मतलब कम्प्लीटली उनको डिसअग्री कर दिया था। शी वॉज लाइक कि जहाँ पे फ्रॉइड का व्यू विमेन की तरफ बहुत ही सेक्सिस्ट था, कैरन हॉर्नाई ने बोला दैट he criticized Freud's view on women, stressed importance on parent and children relationship and culture. She basically focused on basic anxiety, कि अगर बेसिक एंजाइटी एक चाइल्ड में तब डेवलप होती है बिकॉज ऑफ सोशल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स विद द पेरेंट्स एंड बैड पेरेंटिंग स्टाइल्स, ठीक है। सो कैरन हॉर्नाई का ये व्यू था। एंड फिर आता है एरिक फ्रोम, his view was more humanistic social approach. He believed that personality is shaped by social and economic factors, emphasizing on human needs for love, freedom and belongingness. Belongingness मतलब क्या, लोगों के साथ caring, और जैसे हम बिलोंग करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। वी फील दैट कि अगर कोई हमारा दोस्त है तो दैट मीन्स वी बिलोंग टू दोस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट वी आर विद। सो ये पोस्ट फ्रॉइडन इज डन, सच अ लॉन्ग चैप्टर, राइट। फिर आता है क्रिटिसिजम्स। क्रिटिसिजम्स फिर अगेन अपने आप में ही एक 4 मार्क का क्वेश्चन है। criticisms of psychodynamic approach, what are the various criticisms of psychodynamic approach? तो criticisms मतलब कि ये ऐसी सारी चीजें थी जो बहुत कंट्रोवर्शियल थी अपने आप में। तो पहले क्रिटिसिज्म वाज कि एक तो साइंटिफिक एविडेंसेस इतने नहीं है, उन्होंने केस स्टडीज पे ज्यादा फोकस किया था रादर देन प्रूविंग एनीथिंग साइंटिफिकली। Many concepts like unconscious conflicts cannot be tested scientifically. Unconscious आप objectively नहीं देख सकते हो, तुम किसी के unconscious में घुस नहीं सकते हो। You cannot basically objectively test unconscious. So that is अगर objective चीज नहीं है that means scientific नहीं है वो चीज, वो याद रखना। Over emphasis on sexual instinct, as I've already said, based on very small patients or patient sample. Freud's theory was mainly based on case studies of a few patients, not the general population. तो मतलब उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल या थोड़े जो पेशेंट्स वो हैंडल करता था उसके बेसिस पे ये सारी थियरीज दे दी। डिटर्मिनिस्टिक व्यू सजेस्ट बिहेवियर इज कंट्रोल बाय अनकॉन्शियस, लिविंग लिटिल स्कोप फॉर फ्री विल, मतलब वो सिर्फ अनकॉन्शियस के पीछे ही रह गए, सेक्सुअल डिजायर्स के पीछे ही रह गए। एंड फिर फर्दर एक्सपेंशन ऑन फ्री विल, सोशल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे फोकस ही नहीं किया, ठीक है। और जेंडर बायस, he had a very inferior view towards the women and he was very biased because of that. He only preferred men samples, which was very controversial. So that was the psychodynamic approach. Next is behavioral approach. अभी बिहेवियरल अप्रोच अपने आप में ही एक 4 मार्कर क्वेश्चन है। बिहेवियर में एक चीज याद रखना, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन SNR, द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस मतलब क्या, एनी ऑब्जेक्ट विच influences us to behave in a certain manner is basically the stimulus, and उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्ड देते हैं। तो ये इन दोनों की रिलेशनशिप में ही काम करता है। The behavioral approach explains personality as a collection of learned behaviors. मतलब हमारी पर्सनालिटी हमें कंडीशन होती है। देखो बिहेवियरिज्म में एक चीज तुम लोग याद रखना कि बिहेवियरिज्म में इट दे टॉक अबाउट कंडीशनिंग, ठीक है। It emphasizes that behavior is shaped by environmental stimuli and reinforcement rather than unconscious forces. मतलब स्टिमुलस एंड रीइंफोर्समेंट, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलाई होंगे उसके अगेंस्ट में हम रिएक्शंस लेंगे, और उन्हीं रिएक्शंस पे फिर हम लोगों के बिहेवियर्स रीइंफोर्स होते हैं। रीइंफोर्स मतलब ईदर वी आर इट इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स थ्रू अ रिवॉर्ड, और इट इज नेगेटिवली रीइंफोर्स बाय गिविंग पनिशमेंट, ठीक है।
मेन फीचर्स इज दैट पर्सनालिटी अनकॉन्शियस से ज़्यादा लर्नड है, मतलब वो कंडीशन होती है. बिहेवियर इज अक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. फिर उसमें रोल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी दिया है, वेयर बिहेवियर्स फॉलोड बाय रिवॉर्ड्स आर स्ट्रेंथेंड व्हाइल दोज फॉलोड बाय पनिशमेंट आर वीकेंड. मतलब मुझे अगर एक चाइल्ड में, इफ आई वांट अ चाइल्ड टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स और ईट वेजिटेबल्स इन जनरल, शुरू शुरू में बच्चों को रिवॉर्ड्स देने ही पड़ते हैं. फिर आप रिवॉर्ड्स की सिस्टम कब हटाओगे, जब धीरे धीरे यही एक अडेप्टेबल बिहेवियर बन जाता है. फिर अगर इफ द चाइल्ड इज मिसिंग स्कूल, इफ द चाइल्ड इज नॉट डूइंग होमवर्क फॉर कंटिन्यूस बेसिस, चाइल्ड को सस्पेंड कर दिया, उसको खड़ा रख दिया, उसको कोई पनिशमेंट दे दी, तो दैट मीन्स टू रिमूव द अनडिजायरेबल बिहेवियर फ्रॉम द चाइल्ड. तो ये रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के मैकेनिज्म्स के थ्रू ही होता है. Behaviorism, by the way, is objective. So according to that, it is more scientific than the psychodynamic approach. Behavior changes according to situations. Personality is not fixed according to them. Rejects unconscious motives, focuses only on observable and measurable behavior. Very very important, जैसे मैंने बोला तुम लोगों को. उसमें की साइकोलॉजिस्ट है बी एफ स्किनर एंड जे बी वॉटसन. वॉटसन वॉज अ बिहेवियरिस्ट. ठीक है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज द कल्चरल अप्रोच. कल्चरल मतलब, कल्चर मतलब हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था. कल्चर मतलब जिस कल्चर इज सेट ऑफ बिलीव, सेट ऑफ नॉर्म, सेट ऑफ वैल्यूज जिसमें हम रेज्ड होते हैं. ठीक है, वही हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसमें जैसे से फॉर एग्जांपल चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस आ गई, फिर इसमें रिचुअल्स आ गए, ट्रेडिशंस आ गए, सोशल नॉर्म्स आ गए. ये हमारी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से शेप करेंगे. जैसे हमारे पार्ट ऑफ द कल्चर में दैट इफ वी आर अटेंडिंग अ वेडिंग वी विल वेयर ट्रेडिशनल्स, और अगर फॉर्मल्स भी पहनते हैं तो वी विल वेयर फॉर्मल्स विच आर अप्रोप्रिएट. वी आर नॉट गोइंग टू गो टू अ वेडिंग, एन इंडियन वेडिंग, वेयरिंग बनियान एंड शॉर्ट्स बिकॉज इट्स नॉट अप्रोप्रिएट. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु आर रेस्ड इन अ फैमिली ऑफ ट्राइब्स, तो उनके केस में to survive in forests they have to let their child become more independent, more rough and tough, which you cannot expect this kind of a child who is placed in an urban area under the comfort of a house. तो तुमने देखा होगा कि जो गांव के जो बच्चे होंगे और जो अर्बन एरियाज के बच्चे होंगे, उन दोनों में इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा. चाइल्डहुड से ही विलेजेस में या फिर फॉरेस्ट में उनको सिखाया जाता है कि आपको हंटिंग के लिए जाना है, आपका फार्मिंग करनी है, आपको ये करना है, वो करना है. तो चाइल्ड इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा दे देते हैं. अर्बन एरियाज में चाइल्ड बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रेज होता है, जिसके वजह से वो रियल वर्ल्ड में बहुत ईजिली कोप अप नहीं कर पाता. मतलब रियलिटी से वो थोड़ा टाइम लेता है टू अडेप्ट दैन दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन. So role of culture मतलब क्या? Culture determines acceptable behavior, values and beliefs which shapes the personality. Child rearing practices, different parenting styles and different cultures influence the personality traits. इसमें individualistic and collectivistic culture के बारे में बात किया. और इसमें socialization through family, school, society, cultural norms are learned and internalized. ठीक है, चलो. तो कल्चरल अप्रोच कैन बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर और अ 4 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज देयर आर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन. नेक्स्ट इज आर ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच. ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच लास्ट ईयर आपने बात देखा होगा, एब्राहम मैस्लो. ठीक है, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच हम लोग आगे भी बात करेंगे इन चैप्टर नंबर 4. अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, it emphasizes on human potential, free will and inherent goodness of people. It focuses on personal growth and self-actualization rather than unconscious conflicts. उन्होंने क्या बोला था कि हमेशा according to humanists they always believe that a human is born with a free will. And free will मतलब क्या कि मेरे पास ये will है कि मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ. So I can do anything in my life, and as a result every person should be given that free will rather than going into the unconscious and taking the will of that person. अगर तुम उनको उनकी पर्सनल चॉइस के हिसाब से जीने दोगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली, ज़्यादा हेल्दीली रेज होंगे. अगर उन पे बहुत ज़्यादा सप्रेशंस डालोगे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालोगे, तो देयरफॉर इट विल बेसिकली टेक देयर फ्री विल अवे, एंड एज अ रिजल्ट वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में चले जाएंगे. So they focus on free will and personal choice as it's written over here.
Individuals have freedom to choose and control their behavior. Self concept. Personality develops according to how a person perceives themselves. Self actualization, the natural tendency to realize one's own personal. देखो सेल्फ कंसेप्ट के बारे में हमने बात कर दी. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग our way of thinking to reach our fullest of the potential is self actualization, जिसके लिए हर एक इंसान स्ट्राइव करता है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज डज नॉट मीन कि हम लोग बहुत रिच हो जाए या फिर हम ये हो जाए कि वो हो जाए. तो से फॉर एग्जांपल द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड मैट आल्सो नॉट फील सेल्फ एक्चुअलाइज देन अ पर्सन हु इज नॉट दैट, मतलब बहुत बेसिक से इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है पर उसको अपनी लाइफ से बहुत फुलफिलमेंट है. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑलवेज गोइंग टू वेरी, बिकॉज हमेशा ही एक पर्सन का टेंडेंसी टू रीच द फुल पोटेंशियल इज डिफरेंट. ठीक है, दैट थ्रेशोल्ड इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. उन्होंने हमेशा पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर पे ज़्यादा फोकस किया है. ह्यूमंस आर बेसिकली गुड एंड स्ट्राइव फॉर ग्रोथ. इसमें इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट आते हैं कार्ल रॉजर्स हु एम्फसाइज ऑन सेल्फ कंसेप्ट एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. ये वाला हम चैप्टर 4 में डील करेंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन इट राइट नाउ. ऑल्सो हिज व्यूज ऑन आइडियल वर्सेस रियल सेल्फ. आइडियल का मतलब क्या होता है कि जो हम सोचते हैं कि हम ऐसे बने. आई विश कि मैं बहुत हैंडसम होता या फिर आई विश मैं बहुत ब्यूटीफुल होती, मेरी इतनी हाइट होती, या फिर मुझे इतने लोग पसंद करते, या फिर मैं इस जगह पे पहुंच के ये करियर गोल कर सकता या कर सकती. तो दैट इज एन आइडियल सेल्फ. एंड रियल सेल्फ मतलब जो हम लोग प्रेजेंटली है. अगर हमारा रियल सेल्फ हमारे आइडियल सेल्फ के साथ चलता है तो दैट मीन्स यू आर गुड टू गो. पर हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसे बने पर हम रियल में कुछ डिफरेंटली ही अपने आप को, मतलब डिफरेंटली ही बिहेव करते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज वेरी बिग गैप बिटवीन रियल एंड आइडियल सेल्फ. अगर दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे तो इट इज मच मोर हेल्दियर, बट इफ दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस इट इज नॉट हेल्दी. एब्राहम मैस्लो जिसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है. अभी लास्ट टॉपिक फाइनली इज असेसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी. असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी बेसिकली आता है उसमें फर्स्ट टाइप. असेसमेंट मतलब एज वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट इज इवैल्यूएशन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन. ठीक है, चलो. सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स अपने आप में 4 मार्कर्स हैं. These are methods in which individuals provide information about their personality by answering questions, questionnaires और rating scales. उनको क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं, आपने स्कूल में भी किए होंगे, और उसके बेसिस पे वो उसको फिल करके अपने बारे में बताते हैं उन क्वेश्चंस को फिल करके. तो पर्सन आंसर्स अबाउट देमसेल्व्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, इजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर, प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स. ठीक है, इसमें इसकी डिटेल्स यू हैव टू डू फ्रॉम टेक्स्ट बुक. मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऊपर. एंड आइसेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चन है जो साइकोटिसिज्म को मेजर करता है मैक्सिमम अमाउंट में. ये भी बेसिकली मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, तो ये पूरा इसमें भी आपको इलाबरेट करना है बाय द वे. ठीक है, इट्स यू एलिबरेट इन द सेंस कि 3-4 लाइंस में लिखो सो दैट इट इज मच मोर. 6 ये को देखो, कैटल का बेसिकली सोर्स और सरफेस ट्रेट्स के बेसिस पे था, और आइसेंक्स का साइकोटिसिज्म और उसके बेसिस पे था. ठीक है, अभी इसके लिमिटेशंस क्या है. तो फर्स्ट लिमिटेशन है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस. पीपल में गिव सोशली एक्सेप्टेबल आंसर इंस्टेड ऑफ ट्रू फीलिंग्स. जैसे मुझे अगर पता है कि आप मुझे मेरे क्वेश्चनर के बेसिस पे मेरे ऊपर जजमेंट देने वाले हो, तो ऑब्वियसली मैं मेरे ट्रू इंटेंशंस एंड फीलिंग्स से आंसर नहीं दूंगा. आई विल बी आंसरिंग इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर. से फॉर एग्जांपल आई यूज माई स्मार्टफोन फॉर 12 आवर्स अ डे, यस और नो, अगर ये क्वेश्चन है से फॉर एग्जांपल, तो वो भले ही उसको यूज करता होगा मोर देन 12 आवर्स, पर उसको ऐसा लगता होगा कि अगर मैंने इसमें यस दे दिया तो ये तो मुझे सामने वाला इंसान जज करेगा जो मुझे बेसिकली ये टेस्ट दे रहा है. तो रादर देन सेइंग यस, वो अपने ट्रू फीलिंग्स को हाइड करके नो में बेसिकली आंसर करेगा. सो दैट इज सोशल डिजायरेबिलिटी बायस व्हिच कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, बिकॉज हमें फिर सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे प्रॉब्लम्स के. एंड दी अगेन नेक्स्ट वन इज अक्वेंसेंस बोलते हैं इसको. अक्वेंसेंस का मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली इधर मार्किंग गुड और बैड, या फिर गुड. ठीक है, यस 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 यस, नो 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 नो.
मतलब कुछ क्वेश्चन पढ़े बगैर आंसर करे बगैर कुछ नहीं, बिकॉज दे आर लाइक कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको हमें टेस्ट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो. सम में डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट द रिस्पॉन्सेज बिकॉज ऑफ दोस रीजंस. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Projective techniques again, it is used for the purpose of getting the unconscious material on the surface. ठीक है. Projective techniques are personality assessment methods in which a person projects their unconscious feelings, desires and conflicts into an ambiguous stimuli. Ambiguous मतलब क्या? Vague. एक वेग स्टिमुलस दे देते हैं जिसका कुछ हाथ पैर नहीं होता, पर फिर उसके बेसिस पे लोगों को रिएक्शंस देने को बोलते हैं. एंड एज अ रिजल्ट फिर अंदर की उनके ट्रू इंटेंशंस एंड फीलिंग्स बाहर निकलती है. ये आगे हम लोग देखेंगे कौन सी टेक्निक्स हैं. तो इसमें टाइप्स आते हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम एज अ 6 मार्कर बाय द वे. तो इसमें आता है फर्स्ट रोशास इंक ब्लॉक टेस्ट डेवलप्ड बाय हरमन रोशा. Consists of 10 in block cards. Person tells what they see in each ink blot. Responses are analyzed to understand personality dynamics. बेसिकली एक पैटर्न होती है, वो एक सिमेट्रिकल पैटर्न होती है जो एक कार्ड बनाता है. मतलब एक इंक डाल के, वो एक जैसे कार्ड है, से फॉर एग्जांपल कार्ड है, और कार्ड पे बेसिकली एक इंक ब्लॉक, एक इंक ऐसे दे दिया और फिर उसको फोल्ड करके एक पैटर्न बनती है. तो उस पैटर्न में वो क्या देखते हैं उसके बेसिस पे फिर एनालिसिस होता है. तो दैट इज रोशास इन ब्लॉक टेक्निक्स, जिससे लॉट ऑफ टाइम्स अंदर की चीजें नेचुरली भी बाहर निकल जाए. फिर थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट डेवलप्ड बाय हेनरी मरे. Person is shown ambiguous pictures and asked to make a story. Stories reveal motives, conflicts and needs. There are varieties of stories. मतलब कभी कभी 20-25 दिखाते हैं ऐसे स्टोरीज जिसमें सिर्फ पिक्चर्स होते हैं. ठीक है. और वही पिक्चर्स को देखकर उनको बेसिकली आंसर करना होता है कि उनको क्या दिखता है. तो जैसे एक पिक्चर में बस ऐसा है कि दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, देयर इज नथिंग हैपनिंग, एंड वो पिक्चर के बेसिस पे स्टोरी बनाने को बोला. तो जो भी उसमें स्टोरी में क्या होता है, उनको ये भी बोलते हैं कि आप स्टोरी में एक हीरो डालो, एक स्टोरी में एक एंडिंग डालो, एक क्लाइमेक्स डालो, एक स्टार्टिंग डालो, सब डालो, मतलब क्रिएट अ क्लासिक स्टोरी. तो उसी स्टोरीज में से उन इंसानों के कॉन्फ्लिक्ट्स, नीड्स और चीजें बाहर निकलती है. रोजनविंग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी एक फ्रस्ट्रेटिंग इमेज दिखाते हैं कार्टून सिचुएशंस इन्वॉल्विंग फ्रस्ट्रेशन, जिसमें उनको बेसिकली वो पूछना होता है कि आप अगर इस जगह पे होते, इस कार्टून के जगह पे, तो आप कैसे बिहेव करते. तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बेसिकली बाहर निकालने के लिए ये टेस्ट है. सेंटेंस कंप्लीशन एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दे देते हैं और उनको कंप्लीट करना है. तो उसमें आप अपने ऑब्वियसली आर गोइंग टू इमेजिन अ गुड स्टोरी या फिर ऐसा कुछ भी करोगे, तो जिससे क्या होगा, अंदर की जो चीज़ें होगी वो बाहर निकलेगी. जैसे माई फादर ऑलवेज, और व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू, और ये सारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कंप्लीट करने को बोलते हैं. ठीक है. और उनको ये सारी चीज़ में ऐसा बोलते हैं कि ऑब्वियसली देर इन सारी चीज़ में एक चीज़ याद रखना, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. जो भी पर्सन देता है रिस्पॉन्स दैट इज राइट, एनीथिंग इज राइट. बिकॉज हमें पर्सन को राइट और रॉन्ग के बेसिस पे वो नहीं देखना है, हमें उसको बेसिकली ट्रीट करना है. ठीक है. फिर आता है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट. पर्सन इज आस्क्ड टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर. ड्रॉइंग इज एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड सेल्फ कंसेप्ट एंड इमोशनल स्टेट. ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट मतलब कि आपको ह्यूमन फिगर ड्रॉ करनी है इन विच एवर मैनर यू कैन ड्रॉ. फिर उसके बेसिस पे फिर एनालिसिस होता है कि वो पर्सन के फॉर एग्जांपल उसका कंसंट्रेशन हेड पे ज़्यादा है या फिर बॉडी पे पार्ट्स पे ज़्यादा है, सैड है एक्सप्रेशन या हैप्पी एक्सप्रेशन से, जिससे अनकॉन्शियस फीलिंग्स बाहर निकलती है. तो दीज आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग अनकॉन्शियस फीलिंग्स इनटू द सरफेस. फिर लास्ट अपना आ गया बिहेवियरल एनालिसिस, जहाँ पे मीनिंग which uses personality assessment that focuses on observable behavior and environmental conditions that influence it. It is based on behavioral approach given by psychologists like B.F. Skinner. It studies how behavior is learned and maintained through reinforcement and punishment, जिसमें different methods आती है. पहले आती है ऑब्जर्वेशन कर दो डायरेक्ट. बाय द वे इसमें लिमिटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन नेचुरल और इन कंट्रोल सेटिंग्स. एग्जांपल ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड्स क्लासरूम बिहेवियर. ठीक है. तो यहाँ तो क्लासरूम बिहेवियर में साइकोलॉजिस्ट खुद क्लासरूम में बैठ के ऑब्जर्व करेगा या फिर एक कैमरा के थ्रू करेगा या फिर किसी को बोलेगा कि आप मेरे लिए ऑब्जर्वेशन करके दो, वॉट एवर मेथड दे कैन चूज.
बट हाँ इसमें लिमिटेशंस बहुत सारे हैं. ऑब्जर्वेशन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. यू नीड अ ट्रेन्ड ऑफिशियल टू बेसिकली ऑब्जर्व. एंड ऑल्सो अगर मुझे पता है कि मैं ऑब्जर्व हो रहा हूँ तो मैं अपने नेचुरल वे में बिहेव ऑब्वियसली नहीं करने वाला हूँ. सो दैट दीज आर दी लिमिटेशंस. टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया है. बिहेवियरल रेटिंग मतलब क्या? बिहेवियर आर रेटेड बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड peers, provide systematic information about frequency and intensity of behavior. मतलब अगर मेरा बिहेवियर रेट करना है तो मेरे बारे में चीज़ें पूछेंगे मेरे पीयर्स को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, जिसके बेसिस पे वो सेवरल मार्किंग्स में मेरी बिहेवियरल रेटिंग्स देंगे कि इफ़ आई एम, मेरे को आदित्य कैसा है तो आदित्य इज, इफ इज काइंड तो काइंड में कितना रेट दोगे, 1 2 3 4 5 तो बोलेंगे, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 5. तो दैट इज बेसिकली बिहेवियरल रेटिंग स्केल. Behavioral interview. Again, structured interview focuses on specific problems, collects information about antecedents and consequences. इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, so don't worry. Again, interview might be time consuming. उसमें भी behavioral interview के लिए एक trained professional होना ज़रूरी है. And a lot of times interview में जो चीज़ पूछते हैं उससे बहुत डाइवर्ट चले जाता है अगर अनस्ट्रक्चर्ड हो. स्ट्रक्चर्ड हो तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं जान पाते तो हमें हमेशा कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ते हैं. A lot of time people are not willing to give answers because they feel hesitant, they feel that people might judge. तो ये सारे उसमें आ सकते हैं limitations. And the last is nomination. Nomination is a behavioral assessment technique in which teachers, parents and peers are asked to nominate individuals who best fit a particular description. मतलब इवन उसमें इंडिविजुअल्स को भी पूछते हैं कि आप कैसे टाइप के लोगों के साथ किस ग्रुप में खेलना चाहते हो, रहना चाहते हो करके. तो टू पिक आउट is to nominate, and to fit into that particular category is to nominate that person or a particular description. तो जैसे एक डिस्क्रिप्शन दिया है और फिर पूछते हैं कि आप क्लास में से किसको इसमें फिट करोगे, तो दैट इज नॉमिनेटिंग. सो दैट इज वेयर वी हैव एंडेड आवर चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी. वेरी वेरी लेंथी चैप्टर. एंड अगर आप ये वन गो में नहीं देख पाते हो तो फिर आई विल ट्राई टू लीव टाइम स्टैम्प्स अगर हो सके तो, अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक भी देखना हो तो. सो दैट्स देयर. आई विल सी यू. आई होप विद दिस वीडियो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आई नो दिस चैप्टर इज़ लेंदी, इट इज़ ऑल्सो टेक्निकल बट इट इज़ नॉट हार्ड. अगर अच्छे से करेंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे. If you like this video, do hit that like button, share, comment and subscribe to this channel. And you can also follow me on Instagram, The Brainy Batch. I will see you in the next video for chapter number 3. Goodbye.